Dear members, Akhil Bharatiya Kulsit Sangh, a registered organization serving community since 1954. As the word Akhil reflects unity, union, and society, the consolidation of all three words in an organization, we have formed our representation in 36 cities, which is a great achievement for Akhil Bharatiya Kulsit Sangh. आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम लोग समय समय पर अपने ऑनरेबल डॉक्टर्स और ऑनरेबल डिफेंस पर्सनस का ऑनर करते आए हैं और हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे. In our recent activities, we have celebrated our 67 Foundation Day on 21st November, and it has a viewership of 675, which is again a great achievement for Akhil Bharatiya Kulsit Sangh. आजकल अखिल भारतीय कुर्सी संघ अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी चर्चा में है. ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं जैसे गेट टुगेदर प्रोग्राम्स, वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, assistance in medical emergencies, assistance in scholarship, COVID-19 relief fund, lifetime achievements for honorable members, felicitation for senior members, assistance in identifying marriageable children, Chitra, ABK souvenir, Spirit of Cool Sister and ABK's Chronicle, special honor to achievers, education awards, counseling on various aspects, development program, declamation contest, associated platform for the talented artist, annual general meeting and conventions, membership campaigning, Akhil Bharatiya Kulsit Sangh directory, promoting art and cultural. ये 20 सूत्री कार्यक्रम अखिल भारतीय कुलसित संघ के द्वारा चलाए जाते हैं और बहुत बखूबी इसको चलाया जा रहा है क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है और अखिल भारतीय कुलसित संघ का मैनेजमेंट अपनी टीम को पूरी तरह से फ्रीडम देता है अपने कामों को करने के लिए और उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से ये सारे कार्यक्रम आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको चला पा रहे हैं और चलाते रहेंगे. आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है जो हमें मिलता है और मिलता रहेगा. अखिल भारतीय कुलसित संघ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके 66 ईयर्स हो गए हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगेन इट इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट क्योंकि वो 66 ईयर्स में भी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी इन द कम्युनिटी. एंड we are very happy that we are the part of such a great organization who is जिसका अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास है. और we are very thankful to the Akhil Bharatiya Kulsit Sangh for giving us opportunity to serve the community. Thank you very much. Inviting you in motivational Dex, the program which is online conference for the career orientation for youth, especially youth. It is guided by the oriented experienced professionals like Yash, Dr. Shrikant, Mr. Anuj, Mrs. Brenda and Mrs. Ritu. So here we start. And before that, I would like to introduce our two divas, our anchors, Mrs. Nishi Kushreshtha and Miss Agrani Kushreshtha. Mrs. Nishi Kushreshtha, she is the ex-General Secretary of Kulsit Kalyan Samiti and now the chairperson for the Kulsit Kalyan Sangh. It is a welfare organization for the Akhil Bharatiya Kulsit Sangh. And also a very devoted lady, Mrs. Agrani is a student, and as we gone through last time that one senior person, one youth person, we are motivating youth. So Agrani is here to look after the comparing. इसका नमस्कार. और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ इतना कर पा रही हूँ. और तो मेरा कहना यही है कि हमारे सभी की जिंदगी में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. साइकोलॉजी मतलब हमारी लाइफ में हर मोमेंट पे हमें फेस करना पड़ता है. हम किसी की साइकोलॉजी रीड करते हैं या हम कुछ डिसीजन अपने साइकोलॉजी के बेस पर भी लेते हैं.
तो हमारी ही कम्युनिटी में एक बहुत ही ऐसे यश जी है मौजूद जो कि साइकोलॉजी के लिए बारे में हमें मोटिवेट करेंगे और अपने वन चीजों से और इस प्लेटफॉर्म से हम सभी को उनकी मोटिवेशनल स्पीच का फायदा मिलेगा। तो मैं यश जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यश कुलश्रेष्ठा, a young entrepreneur, is the CEO of Feedbox, which he has been building since his second year of college in in a community where government jobs and desk jobs are preferred. Yash defied all odds and turns his passion into profession. After 98% in CAT and 9 IIM calls in hand, majority of the people must have pursued their dream MBA, whereas Yash went on to continue his startup, which is helping him earn more than IIT and IIM graduate already. Here, him at APKS to know more about entrepreneurship, initial problems, psychological barriers, and how to make best out of college years. तो मैं बुलाना चाहूंगी यश जी को कि प्लीज आप आइए और आके हमें अपनी मोटिवेशनल स्पीच से सभी को उबर कर आइए। Thank you so much, ma'am. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. Thanks for an amazing introduction. So, मेरा नाम यश कुलश्रेष्ठ है. I am from भोपाल and मेरा due to college और मेरा पूरा business I am running from इंदौर. मैं इंदौर से रन करता हूँ and my family belongs from कोटा राजस्थान. मम्मी is Mrs. रुचि कुलश्रेष्ठ and पापा is Mr. प्रशांत कुलश्रेष्ठ. ओके, नाउ मैं अपने बारे में बताता हूँ. सो ये जो जर्नी में आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, सो इसमें ही मैं आपको पूरा बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम एंड व्हाट मैं क्या करता हूँ. देन आपको बता दूंगा कि कैसे इस जर्नी तक मैं पहुंचा हूँ. सो बेसिकली अगर मेरे साथ क्या हुआ, आई एम जस्ट 24, मैं अभी भी सिर्फ 24 साल का ही हूँ. तो अगर किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ या बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. मेरी नजरों में मुझे अभी बहुत कुछ और पाना है. बट टू बिगिन विथ, मैं जब कॉलेज में पहुंचा, जब सेकेंड ईयर में पहुंचा अपने कॉलेज के, तो मुझे पता चल गया कि 4 साल बाद या तो मुझे 25 साल की सैलरी से खुश होना पड़ेगा, या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं कुछ नया कर पाऊं. मेरे पास 2 ऑप्शन थे. मतलब आज भी आप लोग को पता होगा, ज्यादातर लोगों के पैकेजेस आफ्टर ग्रेजुएशन 20,000, 25,000, 30,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा नहीं लगते हैं. ये सबको पता है. और मैं जब फर्स्ट ईयर में था 2016 में, तो तब भी इतने ही 22,000, 25,000, 3 लाख पर एनम का पैकेज लगता था सब बच्चों का. और आज भी, उस बात को 6 साल हो चुके हैं, पर आज भी बच्चों का स्टार्टिंग पैकेज इतना ही लगता है. एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू ऑल कि मैं अभी ऑलरेडी, मतलब मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है स्टार्टअप फुल टाइम रन करते हुए, पर मैं ऑलरेडी 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप से. एंड इसकी जो जर्नी है, मैं जिस तरह से एक वो बच्चा जो सोच रहा था कि मुझे भी 25,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना मिलेगा, वहां से लेकर आज उस पोजीशन पे पहुंच गया जहां से मैं प्रॉफिट 4-5 लाख कमा पा रहा हूँ. कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, इसी जर्नी को मैं आप सबको सामने बताना चाहूंगा. तो जैसे अभी मेरा कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है. बहुत सारी कंपनी ऐसा कर रही है, पर हम क्या अलग कर रहे हैं. अभी प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे $1 मिलियन स्टार्टअप्स हैं जो गूगल बैक्ड है, या जिनके शेयर मार्केट में आईपीओ है, या जिनका ब्लू टिक है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे. उन लोग का सोशल मीडिया हम लोग मैनेज करते हैं, मेरी कंपनी मैनेज करती है. फीडबॉक्स नाम है हमारा. काफी सारे पेजेस है जिनके 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं. ऐसे पेजेस पे हमारा टाइप है ऑलरेडी. हम लोग बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे रोहित शर्मा हो गया, रोहित शर्मा हमारे एक स्टार्टअप का रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनको हम कंटेंट देते हैं. दलेर मेहंदी का पेज है, जुबेन नौटियाल, जाकिर खान, काफी लोग के हमने इवेंट्स कराए हैं. इसके अलावा हम लोग बड़ी, जैसे ओरिएंट टाइल हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, शूज की, ज्वेलरी की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है. इन सबको मेरा स्टार्टअप मैनेज कर रहा है ऑनलाइन. तो ये है जो मेरा कंपनी करती है. सो अभी लास्ट ईयर आपको सबको पता है कि कोरोना वाज देयर, तो सबके स्टार्टअप्स नीचे से ऊपर चले गए या नीचे डूब गए. पर इस टाइम पे ये ग्रो करके मैंने और ज्यादा लोग को हायर करा. तो इसी की पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट हम लोग कैसे करते हैं. सो मैं जब सेकेंड ईयर में था, आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर. मुझे लिखना बहुत पसंद था.
तो मेरी मम्मी यूज टू राइट फॉर मैगजीन्स लाइक मधुरिमा और गृह शोभा, इन सब पे लिखा करती थी मम्मी। तो मुझे काफी ज्यादा शौक था राइटिंग का, मुझे काफी ज्यादा कंटेंट राइटिंग का शौक था। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो ऐसे ही किसी ना किसी के लिए लिख के टी सीरीज के लिए एक शॉर्ट मूवी मैंने लिखी। तो 12-15 हजार रुपए पर मंथ में कमा लेता था मेरी सेकेंड ईयर में ही। और मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स है, जो फोर्थ ईयर में है, उन लोग को किसी को 22,000 का सैलरी पैकेज मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, किसी को 18,000 मिल रहा है। मैं ऑल्दो अच्छे कॉलेज से हूँ, आई एम फ्रॉम आईआईटी डीएवी इंदौर, और मेरी मेंस में 33,000 और एडवांस में ऑल इंडिया 11,000 रैंक थी आईआईटी में। बट स्टिल मेरे जो सीनियर्स थे उनका भी लाइक मोस्ट ऑफ द अदर पीपल 70-80% लोगों की तरह ही ग्रेजुएशन के बाद सही सैलरी लगता था। तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि अगर मैं 3 साल मेरे पास है और 3 साल के बाद मैंने अगर 20,000 22,000 रुपए कमाए, 25,000 रुपए कमाए, तो ना तो मैं खुश रहूंगा, ना मेरी फैमिली खुश रहेगी, और ना ही जो मैं इतना सोच के आया हूँ जीवन भर कि मुझे ये पाना है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे और सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इकलौता मेरे मन में बोलता कि मुझे कमाना है, मुझे थोड़ा अलग करना है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ, लाइक सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आया, मुझे पता चला कि इट इज नॉट दैट इजी कि इतना आप कमाओ। तो मुझे जो मेंटर्स थे उनने बस इतना गाइड किया कि व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस चालू रखो। जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे को सुन रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि मल्टीपल ऑप्शन अगर एक स्टूडेंट के पास है ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। तो इसी की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे थर्ड ईयर तक मैंने जितना भी मुझे मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जितनी भी चीजें मैं सीख सकता था उतना सब कुछ मैंने सीख लिया अपने थर्ड ईयर तक। मैंने इवेंट मैनेजमेंट सीख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया जो एक इंजीनियर कर सकता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में सब कुछ होता था। तो मैंने सब कुछ सीख लिया। फिर फोर्थ ईयर आया, अब फोर्थ ईयर में सबको प्लेसमेंट रहता है, कैट एग्जाम देना रहता है। तो द सीन वॉज कि मेरे को पता था कि फोर्थ ईयर में मेरे को या तो कैट देना है या प्लेसमेंट के लिए बैठना है। तो मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि चलो पहले थर्ड ईयर तक सब कुछ कर लेते हैं। फोर्थ ईयर में आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल का था मैं। मैंने सोचा कि चलो अब अपन है ना फोकस कर लेंगे अपने करियर पे। और फॉर एवरीवन, लाइक मेरे भी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हमेशा मुझे यही बोलते रहे कि कॉलेज टाइम में पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आज भी मुझे यही बोला जाता है। मतलब अगर आज मैं 5-6 लाख भी कमा रहा हूँ फिर भी मुझे यही बोला जाता है कि तू जाके गेट क्यों नहीं कर लेता। तो इसी की स्टोरी है कि कैसे मैं फिर थर्ड ईयर में, मैंने फोर्थ ईयर में बहुत मेहनत करी, मैं 18-18 घंटे पढ़ाई किया। मैंने कैट कैट एग्जाम तक मैंने बहुत मेहनत करी। इसी बीच में प्लेसमेंट सीजन होता है, मतलब आप अगर जून से मैंने पढ़ना शुरू करा तो अगस्त और सितंबर में आपका प्लेसमेंट सीजन होता है। तो प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनीज आती है, आपको बैठना पड़ता है, यू फाइट फॉर द बैटल। आप लोग के बच्चे लोग, आपके बेटे बेटी सब लोग कर रहे होंगे ये सब। तो फोर्थ ईयर में बहुत भाग दौड़ होती है, बहुत एकदम फाइट होती है कि आपको प्लेसमेंट हासिल करना है। और मेरे पास भी ये था कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए स्टार्टअप के लिए सोचा तो मुझे लोग ये बोल सकते हैं कि नौकरी नहीं मिली तो स्टार्टअप कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे किसी चीज का सुनना नहीं है, मुझे सब कुछ पाना है, और फिर मैं स्टार्टअप का कुछ सोचूंगा। तो मैंने 3 कंपनीज, एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, जैसे सबका लगता है मेरा भी पैकेज लग गया। वो ऑब्वियसली 3-3.25 लाख, 4.5 लाख पर है ना, उस वक्त का मेरा हाईएस्ट पैकेज था जो मुझे मिला ऑफर, साल भर का 4.5 लाख रुपए। तो एक मैंने पा लिया कि मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मैं और ऑप्शंस ढूंढता हूँ। तो मैंने अब मैं खुश नहीं था कि मैं इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, तो आई हैव टू अर्न मोर, आई हैव टू बी लाइक, आई हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। तो मैंने 12-18 घंटे मेहनत करना शुरू करा, कैट के लिए बहुत तैयारी शुरू करी, मैंने बहुत मेहनत जी जान लगा दी। टाइम इंस्टीट्यूट जाता था मैं। एंड मान लीजिए 26 नवंबर को अगर कैट है तो 24 नवंबर को मेरे को बहुत बुखार लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो रही थी, मुझे बुखार हो रहा था, मुझे तबीयत खराब हो गई थी। मैं गया डॉक्टर को, मैंने दिखाया, और जो सबसे बुरा हो सकता है एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, वो मेरे साथ हो गया, और मैं डेंगू पॉजिटिव आ गया। आफ्टर इतना कुछ करने के बाद मैं कैट के 2 दिन पहले मुझे डेंगू पॉजिटिव निकल गया। एंड अब मैं शार्टेड हो गया, मैं टूट गया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कैट अब साल में एक ही बार आता है, या तो मैं उस वक्त देता या 1 साल बाद मैं अगले साल 2019 में देता कैट। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो होगा अपन कैट के बाद सोचेंगे, अभी तो मुझे फोकस करना है अपने कैट पे, मैं कैसे भी दे दूंगा। तो मैंने 2 दिन और मेहनत करी, मैं गया 8 बजे एकदम उठ के 9 बजे पहुंच गया। और जब कैट देते हो आप तो 3 पेपर होते हैं, 2 पेपर मैथ्स के होते हैं, DILR मैथ्स, और तीसरा इंग्लिश का होता है। तो DILR मैथ्स तो आपकी जो स्पीड है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पर जब आपको बुखार है, आप ठिठुर रहे हो, तो आप कभी इंग्लिश पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश पे आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे 2 पेपर दिए करके, 2 पेपर होते हैं, नहीं, एक 3 घंटे का पूरा पेपर होता है इनफैक्ट, और मैं घर आ गया। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मैं 1 हफ्ते के लिए उठ नहीं पाया। आई वाज बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट हो गया। और मैंने सोच लिया था कि कैट मैंने दे दिया है, अब मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे चल जाएगा। तो इस तरह से मेरी जर्नी की वहां से शुरुआत हुई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जब कैट का रिजल्ट आया तो इट वाज बैम, 98 परसेंटाइल मुझे आ चुके थे कैट में, और मेरे को 9 IIM कॉल्स आ चुके थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो मेरे साथ हुआ। तो मुझे लग गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड आई डोंट हैव टू लाइक स्टैंड बैक, मुझे पीछे नहीं हटना है। देन आगे बढ़े, आगे है ना, हम लोग हर साल एक इवेंट कराते हैं, जैसे कॉलेज में इवेंट होता है। तो उस साल जुबिन नौटियाल, जाकिर खान इवेंट में आने वाले थे। इवेंट था 1 मार्च को, और उससे ही 4 दिन पहले रात को 12 बजे जब मीटिंग से वापस आ रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एंड ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि लाइक मेरे पाँव में 12 टाके लगे, मेरा गड्ढा हो गया पाँव में इनफैक्ट। और फिर वो अगेन मेरे पास इवेंट था, पर मेरे पास कैट वाला मोटिवेशन था कि अब मैं एक बार कर चुका हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप कभी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल खोलेंगे तो के राहत इंदौरी साहब, जुबिन नौटियाल, जाकिर खान, सबकी सब तस्वीरें मिलेंगी आपको मेरी। तो वो इवेंट में, और आपको कुछ तस्वीरों में दिख जाएगा कि मैं प्लास्टर चढ़ा के बैठा हूँ और मैं चप्पल पहना हूँ, सब एकदम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, चप्पल पहना हुआ, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और मैं पूरा इवेंट करा रहा हूँ। मतलब 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ मैं उसी इवेंट में। और इस तरह से एक और इवेंट मैंने खत्म किया, एक और समस्या के साथ। तो मुझे लगा कि हर समस्या मेरे पास आती है, भगवान काफी समस्याएं भेजता है। एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता, या फिर मैं जैसे जनरल जनता होती है, मैंने हर वो काम किया है जो आप आजकल के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं पूजा कर लेता हूँ टाइम पे, मैं मतलब सब कुछ अच्छे से करता हूँ। और मैं इसका काफी रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम उतना ही है, सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बस टाइम उतना ही था, या तो मैं दारू में या फिर सिगरेट पी के या तो इसमें टाइम वेस्ट कर लेता, या मैं कुछ अच्छा करके अपने साथ प्रोडक्टिव करके मैं कुछ अच्छा राह दिखा दूं ताकि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं। इसी बीच मैं एक एनजीओ में भी काम करता था। तो साल के हम लोग करीब 150 बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे फॉर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए। तो जैसे ही ये खत्म हुआ तो मेरे पास अब ऑप्शन है, मेरे पास एक IIM कॉल है, 9 IIM कॉल है मेरे पास। मैं किसी भी IIM कॉलेज में जा सकता हूँ जो प्रेस्टीजियस है, मतलब कहीं पे मैं जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी बहुत अच्छे से, अच्छे पैकेज मिल जाएंगे 10-15 लाख के मिनिमम। और एक मेरे पास 3 नौकरियां हैं जहां मैं जा सकता हूँ, पुणे, बैंगलोर, और 22,000 रुपये पर मंथ से सैलरी शुरू कर सकता हूँ। पर बात हुई थी कि अगर मैंने 3 साल इतनी मेहनत करी है, मेरे स्टार्टअप पे, जो मेरा स्टार्टअप चल रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो मेरी बहुत बड़ी टीम है, मतलब 15-16 लोग की टीम, कॉलेज के बच्चे थे जो मेरे साथ काम कराते थे स्टार्टअप में। तो मैंने सोचा कि अब तो ये नहीं करना है मुझे कि मैं अब ऐसी जगह चले जाऊं जहां से वापस आके मुझे फिर से स्टार्टअप जीरो से शुरू करना पड़े। क्योंकि एक चीज मेरे पे हमेशा थी कि मुझे किसी और के लिए काम नहीं करना है। तो मैंने इंदौर में ही मैं इंजीनियर था, IT इंजीनियर हूँ मैं। मैंने इंदौर में ही एक स्टार्टअप ढूंढा जो मेरे को बिजनेस मैनेजर की पोजीशन ऑफर कर रहा था। एंड मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो फर्स्ट थी वो 45,000 पर मंथ थी। और मैंने जैसे तैसे घर वाले सबको कन्विंस कर लिया, पेरेंट्स को सबको कन्विंस कर लिया कि मैं कर लूंगा। एंड मेरे को IIM कॉल नहीं जाना है, IIM नहीं जाना है, क्योंकि मैं उससे बेटर कर सकता हूँ इन 2 सालों में जिसमें मुझे IIM में पढ़ना पड़ेगा बैठ के। मेरे 98 परसेंटाइल IIM में थे, मेरे लास्ट सेमेस्टर में 90 परसेंटेज थे। तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, पर ऐसा था कि मुझे पता है कि मैं कर चुका हूँ जितनी मेहनत, अब मेरे स्टार्टअप को मेरी जरूरत है। तो इसके बाद 6 महीने, मतलब मेरे पास फंड नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा लूँ, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे पैसा लूँ। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ईजी होता है, आप लोग का बच्चा अगर चाहे कि आप चाहो कि बच्चे को देना है आपको, तो आप 8-10 लाख दे दें कि लीजिए लो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लो। या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए आप नहीं देते हैं, आप उसको UPSC कोचिंग करना हो तो जरूर दे देंगे। आपको उसको कैट की कोचिंग करना हो, उसको IIT कोचिंग करना हो, नीट की कोचिंग करना हो, तो आप सब देते ही आए होंगे आज तक। मेरे पेरेंट्स ने भी दिया था और आगे भी दे देते किसी कोचिंग के लिए, MBA की फीस के लिए। पर मुझे था कि मुझे खुद कमाना है, तो मैं 6 महीने बिल्कुल स्टार्टअप, सुबह जैसे जॉब होता है तो 10 से 5 तक मैं जॉब करता था और रात को मैं अपने स्टार्टअप पे काम करता था। 10 तो ये 12-18 घंटे रोज काम कर करके अगस्त सितंबर में फिर मेरे पास हो गया, मेरे पास 3-4 लाख रुपए हो गए। अब मैं अपना ऑफिस डाल सकता हूँ और अपने जो मेरे एम्प्लॉयज है, जो कॉलेज में बच्चे थे जो मेरे लिए काम करते थे, मैं उनके लिए ऑफिस खोल सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन स्टार्ट फुल्ली। सो दिस इज हाउ आई बिगैन माई जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप, काफी अप्स एंड डाउन के साथ। पर द
ओनली थिंग जो मुझे लगता है जो मेरे सपोर्ट में रही, एक होती है एनर्जी। हमेशा एक एनर्जी होनी चाहिए, हमेशा एक एनर्जी होनी चाहिए हर काम करने के लिए। दूसरा एक ब्रेवरी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेरे को फ्रैक्चर्स हो गए मेन टाइम पे हुए, मतलब ऐसा भी नहीं कि साधारण सा जीवन चल रहा है और मेरे को फ्रैक्चर हो गया, एक बड़ा इवेंट आ गया तो मेरे को फ्रैक्चर हो गया। डेंगू के वक्त कैट के वक्त डेंगू हो गया मुझे। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आम दिनों में तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे टाइमों पे होना जिस वक्त आपकी उस वक्त को आपकी बहुत जरूरत है, उस वक्त कुछ उल्टा हो जाए आपके साथ और फिर भी आप कुछ अच्छा कर दो, तो ये है जो मेरे के अंदर ब्रेवरी थी कि मुझे ये करना है तो मैंने कर लिया। तो अब होता क्या है, ये जर्नी इतनी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि ये जर्नी से शायद आप किसी को मोटिवेट कर पाए, आप किसी को बता पाए कि हाँ इस बच्चे ने इसका किया है, कोई और भी कर सकता है। पर दिक्कत जो मुझे टॉपिक मिला है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो वो क्यों आते हैं? तो ऐसा है कि आज भी मैं अगर 3-4 लाख कमा रहा हूँ, या फिर मैं हमेशा से 3-4 लाख नहीं कमा रहा हूँ। मैं जब स्टार्टअप शुरू किया था तो मैंने 70,000 रुपए से शुरू किया, मैंने 13,000 से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं अप्रैल में 13,000 कमाता था। जब मैंने ऑफिस खोला तो मेरे पास 70,000 आए, क्योंकि 25,000 तो मेरा रेंट ही चले जाता था। और उसके बाद एम्प्लॉयज को देना है, किसी को 2,500, 4,000, 5,000, 10,000 किसी को देना है। उन सबके बाद फिर भी मैं बच जाता था इतना कि मैं सर्वाइव कर सकूं वहां पे। पर हर वक्त मुझे क्या सजेशन मिलता था मेरे पड़ोसियों से, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली से, मेरे मम्मी पापा को सब फोन करके क्या बोलते थे कि आपके बच्चे को गेट दे देना चाहिए, उसमें बहुत स्कोप है, उसको सरकारी एग्जाम देना चाहिए, बैंक पीओ, यूपीएससी, बहुत कुछ होता है, आपको भी पता होगा। तो आज भी उस वक्त तो बहुत ज्यादा हर कोई ये फोन करता था कि ये काम ये क्यों कर रहा है, वाई इज ही डूइंग दिस, उसको बैंक पीओ जाना चाहिए, उसको यूपीएससी देना चाहिए, उसको गेट देना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग गेट दे के बहुत कमा रहे, 1.5 लाख 2 लाख। मतलब मैं बार बार फिगर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिगर्स से ही लोगों को ज्यादा समझ आता है कि क्या बात चल रही है। मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट फिगर से वो समझ आ जाता है ना कि किस पर्सपेक्टिव पे बात चल रही है। तो मुझे भी ऐसे ही, मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे ही फोन आते थे कि हमारे ऊपर गेट दिया था उनने, वो इसमें सरकारी कंपनी में काम करते हैं एंड वो अभी 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपके बच्चे को वहां तक पहुंचने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, मैं हूँ 24 साल का, मैं उस वक्त 22 साल का था, एंड जिनसे मेरा कंपैरिजन हो रहा है वो 30 साल 35 साल नौकरी करके वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंपैरिजन बहुत ही गलत है अगर आप किसी बच्चे को किसी ऐसे से कंपेयर कर रहे हैं जो 30 साल 50 साल से मेहनत कर रहे हैं उस फील्ड में। क्योंकि अभी अगर कोई बच्चा चाहे, ठीक है, लाखों में से एक जना बहुत अच्छा कर लेता है स्टार्टअप में, पर वो इसलिए क्योंकि बाकी 10-20 हजार बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ करे, अपना पैशन फॉलो करे। मुझे पता था अगर आपके बच्चे ने आईआईटी में या फिर कैट में, गेट में या नीट में, जो भी आपके बच्चे ने 11-12 के टाइम पे एग्जाम दिया, उसमें अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो आप, वही तो बच्चा है आपका, अभी भी वही बच्चा है, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए आपको कि अभी भी वो कर लेगा। मतलब कोई उस वक्त किसी ने नहीं रोका तो अभी कैसे रुक सकता है वो, उस वक्त भी कर सकता है। और दूसरा, बच्चे को पता होना चाहिए, अगर बच्चा कोई मुझे सुन रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि जो कॉलेज का टाइम है उसमें सब मस्ती करते हैं, सब मजे करते हैं, सब कर लेते हैं, पर वो लोग 4 साल बाद जाके नौकरियां ढूंढ रहे रहते हैं या 20-25 हजार की नौकरी कर रहे होते हैं। पर जो लोग उस कॉलेज टाइम में मेहनत कर रहे होते हैं वो लोग कि सीधे 20 लाख 25 लाख इस टाइप के सैलरी पैकेज लगते हैं। मेरे कॉलेज में तो यही होता है और मैंने ज्यादातर लोगों को यही करते देखा है कि जिनने मस्ती मजाक सब मजे कर लिए कॉलेज टाइम में, उनको उसके बाद जीरो से शुरू करना पड़ता है आफ्टर देयर कॉलेज लाइफ। पर हम जैसे बच्चों, कुछ लोग जो अच्छा कर लेते हैं, जो कॉलेज टाइम में अच्छा कर लेते हैं, वो कॉलेज खत्म होते ही दे आर हैप्पी इनफ, फैमिलीज उनकी खुश रहती है, उनके फैमिली को जो चाहिए वो उनको दे सकते हैं। दे आर हैप्पी टू टेल एवरीवन कि हाँ ये मेरा बच्चा है, इसने इतना अच्छा काम किया है। तो दिस इज वेयर माय टॉपिक कम्स कि साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत आते हैं। हर कोई आपको रोकना चाहता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। मेरा भी दोस्त नहीं थे, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे मेरे जूनियर्स मेरे ज्यादा सगे दोस्त थे, क्योंकि जूनियर्स को ज्यादा आपको पोटेंशियल समझ आता है कि ये सर हमारे को अच्छी राह पे बता देंगे, हमारे को अच्छी राह दिखा देंगे। पर जो साथ वाले होते हैं ना, वो आपकी इज्जत नहीं करते ज्यादा। वो बोलते हैं, उनको लगता है कि ये ज्यादा उड़ रहा है या फिर ये गलत जा रहा है। या मान लीजिए 60 लोग का बैच है, 50 लोग कुछ और कर रहे हैं, 10 लोग कुछ और कर रहे हैं, आप उन 10 में से भी यूनिक हो, तो आप तो क्राउड का पार्ट ही नहीं हो, तो कभी आपको कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। मैं अभी भी जब भी सोचता हूँ कि आई वॉज देयर, मैं कभी ऐसा था कि सब लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं ये क्यों कर रहा है, इसको गलत डायरेक्शन में, इसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे आज भी लगता है कि वो लोग आज मेरे से काफी नीचे, वो लोग अभी काफी मुझे फॉलो करते हैं, उनके भाई बहनों के टिप्स मुझसे टिप्स लेते हैं कि मेरे भाई बहन को क्या करना चाहिए। पर और वो वही लोग हैं जो 3 साल पहले मुझे कहते थे कि तू ये काम क्यों कर रहा है, तो गलत है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है।
सो दिस इज वेयर द थिंग इज। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार स्टार्टअप शुरू हो गया तो आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे, ऊपर ही ऊपर जाएंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे कोरोना आया, अब है ना एकदम फिगर्स पे आता हूँ। सो मान लीजिए अक्टूबर 2019 चल रहा था, हम लोग बहुत खुश थे, हमारा स्टार्टअप शुरू हो गया, ऑफिस शुरू हो गया, मम्मी पापा को मैंने कटिंग लाइक इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। देन एकदम से फरवरी में कोरोना आ गया। तो उस वक्त क्या हमारे इंदौर के ना 3 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, इस तरह के जो एकदम होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट, ये सब होते हैं ना, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। हम इनका सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, ई कॉमर्स पे सेलिंग बढ़ाना, ये सब काम करते थे। हम लोग ई कॉमर्स सेलिंग में एक्सपर्ट है, लाइक वी कैन, हम किसी भी के बिजनेस का ई कॉमर्स सेलिंग काफी अच्छे से कर लेते हैं। तो हम लोग कैफेज, रेस्टोरेंट की ऑनलाइन सेलिंग, ये सब हम काफी कर रहे थे। एंड आपको पता होगा कि सबसे पहले कोरोना आया हुआ, आपने अपनी फैमिली वालों को घर बुलाया, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बंद किया? आपने दाल चावल खाना बंद नहीं किया, आपने कपड़े पहनना, आपके पास हाँ, कपड़ों की बिक्री बंद होगी, पर आपने पहनना बंद नहीं किया, ठीक है। और एक चीज आपने जरूर बंद कर दी, वो है बाहर का खाना। आप सब लोगों ने बाहर का खाना बंद कर दिया होगा, हो सकता है आज भी आप नहीं खा रहे होगे। तो मैं आज तक मतलब हमारे सबसे ज्यादा क्लाइंट वही वाले थे जो बाहर का खाते थे। सब मतलब इनफैक्ट सॉरी, होटल और कैफे वाले लोग थे, वो हमारे सबसे ज्यादा क्लाइंट थे। तो फरवरी में जैसे ही कोरोना हिट हुआ, सारे क्लाइंट बंद, हमारे 15 क्लाइंट थे, सबका बिजनेस बंद हो गया, सबका। आई वॉज लेफ्ट विद 0 क्लाइंट, 0। तो अगेन मैं 70-80 हज़ार रुपए खुशी खुशी कमा रहा था, मेरे 10 एम्प्लॉयज थे जिनको मैं सैलरी दे रहा था। तो दिस वॉज माई प्रॉफिट, 70 मेरे पास बच रहे थे, किसी को 5,000 से लेकर 15,000 तक मैं सैलरी बांट रहा था। तो अब एकदम हम लोग बंद हो गए, लाइक लाइक एवरी अदर बिजनेस हम लोग फिर से बंद हो गए। एंड वो पार्ट वॉज द टफेस्ट फॉर अस। मतलब उस वक्त, अब जब आगे कभी भी मैं किसी को मिलता हूँ, किसी को बताता हूँ जर्नी के बारे में, तो ये मेन पार्ट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ। क्योंकि उस वक्त 10 लोग की फैमिलीज या फिर 10 लोग मेरे पर डिपेंडेंट थे, जिनकी मैं सैलरीज बंद नहीं कर सकता था, और इधर मेरा रेवेन्यू 0 हो चुका था। सो आई वॉज लेफ्ट विद, आइदर मैं बंद कर दूं, उनको बोल दूं कि नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, और नेक्स्ट चीज वॉज कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ चेंज आ पाए, लाइक मैं कुछ नया कर पाऊं। तो हम लोग, वी वर वेरी गुड कंटेंट राइटर्स। आप भी आप feedblogs.com डालेंगे तो कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा वेबसाइट आपको दिख जाएगा। तो अप्रैल में हमने सोचा कि चलो हमारे पास फ्री टाइम है, तो एक हम कुछ नया सीख सकते हैं, और दूसरा हम लोग कुछ इसी को रिवाइव कर सकते हैं। तो हम लोग ने नया सीखने में टाइम शुरू करा। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि टाइम को नया सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। आज भी मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, मैं बुक लवर बहुत ज्यादा हूँ। मेरे घर में 200 बुक्स रखी हुई है, नॉवेल्स, बहुत सारी बुक्स मेरी फेवरेट है। तो इसी तरह अप्रैल में हम लोगों ने ये नया शुरू कर दिया, और उसके बाद हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इधर के क्लाइंट्स को पिच करने लग गए। अभी मेरे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, दुबई, सब जगह क्लाइंट्स है। तो ये मैंने शुरू किया पिचिंग अप्रैल में। उसके पहले मैं लोकल काम कर रहा था, इंदौर का काम कर रहा था। तो धीरे धीरे पहले दुबई का क्लाइंट आया, फिर ऑस्ट्रेलिया का आया, अमेरिका का आया, फिर यूएसए का आया। तो धीरे धीरे करके हम लोग को क्लाइंट्स मिलने लग गए, हम लोग और कंटेंट स्ट्रांग हो गया, मार्केटिंग स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग वापस से, अगर मैं प्रॉफिट का ही बताऊं तो वापस मैं 13,000 पे पहुंच चुका था। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एंड रेंट जो मैं दे रहा था, मैं वापस 60,000 पहुंचा, मैं 1.5 लाख पहुंचा, जुलाई में मैं 1 लाख पहुंचा, अगस्त में 1.5 लाख पहुंचा, सितंबर में 3 लाख पहुंचा, एंड फाइनली दिसंबर में मैं 5 लाख प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूँ। लाइक लास्ट मंथ ही मेरा, हमारी कंपनी का 5 लाख प्रॉफिट है। 200 इंटर्न्स को हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं हर साल। 40 एम्प्लॉयज हैं मेरी कंपनी में अभी। एंड जो मैं आपको शुरू में बताया कि इतने सारे तरह के मेरे अभी क्लाइंट्स हैं, वो तो मेरे अभी हैं ही। तो दिस वाज द जर्नी जिसके थ्रू मैं अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मुझे आप में से किसी ने बुलाया, अनुजीत सर आई गेस उनका नाम है, जिसने मुझे बोला कि आप आइए यहाँ पे और सबको बताइए कैसी जर्नी है, क्या दिक्कतें आती हैं। तो ये तो मेरी जर्नी थी। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं कवर करूंगा फिर। किसी को कुछ पूछना है, किसी के बच्चे के लिए, किसी के चाइल्ड के लिए, किसी के स्टार्टअप के लिए? ऑल राइट, नो क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट नहीं सुन रहा है क्या? मतलब कोई बच्चा सुन रहा हो मुझे, किसी के साथ बच्चे Hi, बैठे हों? I'm हेलो, Agrini. हाय, I'm a second हाय, year हाय student. अदिति। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? Delhi. यू आर फ्रॉम दिल्ली, ओके। सो व्हाट आर यू डूइंग, परस्यूइंग? BSc Honors Food Technology. ओके, सो एनी पैशन, किसी पैशन की तरफ झुकाव था जो नहीं करा आपने? No, this is something that I chose, and
I'm also a content writer, so society के लिए लिख रही हूँ. But for sure you have motivated me a lot now. थैंक यू. मैं यही चाह रहा था कि लोग मोटिवेट हो जाए. यू कैन अप्लाई एट माई कंपनी. वी हैव लाइक एम्पल ऑफ वर्क फॉर इंटर्न्स एंड कंटेंट राइटर्स. यू कैन जॉइन अस. Sure, या sure. इट्स फीडबॉक्स. यू कैन लाइक गूगल इट. कहीं से भी आप गूगल करोगे यू कैन रीच आवर वेबसाइट. ठीक है. सो द थिंग इज मतलब आप लोग यहाँ तो कम लोग हैं. ऑल्दो हम लोग नॉर्मली 200-300 लोगों की टीम मीटिंग होती है इंदौर में. क्लब मीटिंग्स होती है जो, तो उसमें हम लोग क्या है, बहुत सारे क्लब के मेंबर्स को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं. तो हम लोग का कैसा पैटर्न है कि मैं ऐसा है कि मैंने धीरे धीरे करके सीखा था खुद से. तो 3 साल से हम लोग 4 साल हो गए अब. जब मैं सेकेंड ईयर में था तब से ही हम लोग ने जूनियर्स को हायर करना शुरू किया था. तो हम लोग क्या करते हैं हर साल 100-150 हम लोग पूरे इंदौर में ना इंटरव्यूज करवाते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों का, ताकि हम लोग उनको राह दिखा सकें. तो हमें ना 600-700 लोगों के करीब इंटरव्यू करते हैं और फिर उनको 150 बच्चों को चुनते हैं उनमें से. और उन 150 बच्चों को साल भर हम ट्रेनिंग देते हैं. कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांड मार्केटिंग, जितनी चीजें उनको आनी चाहिए एक दुनिया में सर्वाइव करने के लिए. मतलब सेल्स सबको आना चाहिए, कंटेंट राइटिंग सबको आनी चाहिए, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है. तो इस तरह की चीजों को हम ट्रेनिंग देते हैं. और फिर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता हूँ मैं, फिर उन लोग को नौकरी देता हूँ. 1 साल बाद मैं उन्हीं लोग को हायर कर लेता हूँ. और अभी मेरी कंपनी में 2,500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक के सैलरीड एम्प्लॉइज है. और मैं अभी 24 साल का हूँ, है ना. ये मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं पिछले 1.5-2 साल में अपनी कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ, तो वो झूठ होगा. क्योंकि उसके पहले जो मैंने कॉलेज में 3 साल मेहनत करी है वो हमारी सच्चाई है. वो 3 साल कॉलेज में मैंने मेहनत नहीं करी होती तो ये ओवरनाइट सक्सेस बनने में मतलब इतना इजी नहीं होता. तो वो जो 2 साल मैंने पहले मेहनत करी, जो मैंने 3 साल मेहनत करी, और अब 5 साल मुझे मेहनत करते हुए हो चुके हैं. पर मेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है कि मेरे को तो 1.5 साल ही हुआ है कॉलेज छोड़े हुए, तो 1.5 साल में मैंने सब कुछ कर लिया. ये तो बताने की बात हो गई. पर अगर मुझे रियलिटी चेक है तो मैं 4 साल से 18-18 घंटे बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर. तब जाके कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग के पास ऐसे ब्रांड्स हैं कि मैं अगर नाम ले लूँ यहाँ पे जितने सारे आपको ब्रांड बताए, इन लोग का हम काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है. तो यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, जितना हमें मेहनत लगी, तो वो बस इसलिए हो पाया कि मैंने पहले कॉलेज टाइम में बहुत मेहनत करी थी, है ना. तो मेरा अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप बच्चों को सपोर्ट करिए प्लीज. मतलब पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा कोई पैशन इकोनॉमी नाम का एक टर्म होता है, 2 तरह के टर्म होते हैं, एक गिग इकोनॉमी होता है, एक पैशन इकोनॉमी होता है. ठीक है. सो पैशन इकोनॉमी इज समथिंग कि ये सब जो चीजें है ना, कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है. गिग इज फ्रीलांसिंग. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं आपको कमा के देती है. तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं. बट इट कैन बी समथिंग जो आप किसी भी उम्र में जाके कर सकते हैं. जैसे मैंने ये आज सीख लिया तो मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं लिख के अपना कंटेंट बेच सकता हूँ, और मैं किसी की नौकरी भी कर सकता हूँ. सो दिस इज समथिंग ये बच्चों को आना चाहिए. एंड अगर किसी का स्टार्टअप है, कोई कुछ चीज में पैशनेट है. 11वीं 12वीं में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जेई, नीट, मेडिकल, ये सब के एग्जाम्स देने पड़ते हैं. तो जब वो एग्जाम देता है तो ज्यादातर बच्चे अपनी चीजें छोड़ देते हैं. फुटबॉल, क्रिकेट, तो नॉर्मल चीजें जो छोड़ते हैं उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो अभी भी फुटबॉल का इतना ज्यादा फ्यूचर इंडिया में नहीं है. पर जो बाकी चीजें लोग छोड़ते हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिशियन, इन सबको काफी ज्यादा आजकल प्रॉफिट हो रहा है. क्योंकि हम जिनका काम कर रहे हैं वो खुद भी इन्हीं में से लोग हैं. डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन है. बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं. काफी बड़ी कंपनीज के सीईओ और सीएमओ से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. लाइक हम लोग उनके ब्रांड का रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हैं, ब्रांड ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड दिस मैं सब बिना एमबीए के कर रहा हूँ. मैंने सोचा था मैं एमबीए कर लूँ, पर मुझे पता है कि एमबीए करके वही किताबी ज्ञान आना है जो सालों से आ रहा है. एंड यहाँ पे प्रैक्टिस करके मैं एमबीए वालों को हायर कर रखा हूँ. तो इंदौर के काफी सारे एमबीए स्टूडेंट्स हैं. बहुत सारे IIM ग्रेजुएट्स हैं जो मेरे इंटर्न्स हैं. अभी IIM रायपुर के मेरे पास इंटर्न्स हैं, IIM इंदौर के इंटर्न्स हैं, IIM काशीपुर के इंटर्न्स हैं. और मेरे पास IIM रोहतक, संबलपुर, सिरमौर, बहुत 9 IIM कॉलेज से मैंने कन्वर्ट कर लिया था, इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, उसके बाद मैं नहीं गया. तो ये पैशन होता है कि बच्चों का पैशन होता है. तो और कॉलेज टाइम इज द बेस्ट. मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको IIT और NIT मत दिलाओ या उसे नीट मत दिलाओ, क्योंकि वो एग्जाम जब वो देगा तो वो कंपटीशन सीखेगा. फिर वो अच्छे कॉलेज में जाएगा जहाँ वो आराम से जो चाहे वो कर सकता है अपने पढ़ाई के अलावा. एंड जब वो वहां पहुंच गया तो उसे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी कुछ पैशन वाला फॉलो करने में. क्योंकि एट द एंड आपको क्या चाहिए आपके बच्चे से? आप चाहते हैं कि वो कमाए ना, आप चाहते हैं वो कमाए, वो नाम रोशन करे. तो वो करेगा, क्योंकि इन सब चीजों में नाम रोशन बहुत हो रहा है, इन सब चीजों में कमाई बहुत हो रही है.
श्योर सर, गिव मी 2 मिनट। सो एट द एंड बस आप, मैं इतना ही चाहता हूँ, आपको अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। एंड मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप बस सपोर्ट करिए पैशन को फॉलो करने में। आप सपोर्ट करिए कि किसी का स्टार्टअप है तो वो उसको अच्छे से बड़ा कर पाए, और सपोर्ट करिए कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, लोगों से हटके कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको करने देना चाहिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर मी। I'm Agrini Kulshrestha, daughter of Anurag Kulshrestha, and one of the anchor of this motivational desk. First of all, Mr. Yash Kulshrestha, actually, as I already said, you spoke wonderfully and motivated. I'm sure motivated many people listening to you. Moving on, humanity is the biggest religion, and this can be reflected in Dr. Shrikant Kulshrestha's life. Dr. Shrikant Kulshrestha is an environmentalist, social worker, and an educationist. He did his PhD in English under Mr. Ruskin Bond. He is a government teacher and master trainer of English. Let's hear him speak about humanity. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Agrini ji. First of all, I would like to give tons of congratulations and tons of thanks to Miss Nishi Kulshrestha ma'am and another Sri Vivek Kulshrestha ji, who has made all the person congregated in this international forum, Akhil Bharatiya Kulshrestha Sangh, which is run from Delhi. And it is a motivational desk. I would like to just come on the topic. Motivational desk basically, not only people always speak it is for the youth, but motivational desk, it is for all the ages, for all the people, for all the ages, for all the people. Well, I was taught by lots of teachers, and all the teachers are still alive. I have joined Uttar Pradesh Shiksha Vibhag when I was 22 years of age, and I got selection in 7 districts of Uttar Pradesh. So, well, and a brief introduction, she has already, Agrini ji has already cited, and another, yes sir, yes Kulshrestha ji, marvelous spoke. ये बहुत अच्छा बोला है सर ने, बहुत ही बढ़िया बोला है। तो मोटिवेशनल डेस्क के लिए एक छोटी सी लाइन से, 4 लाइनों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सोहनलाल द्विवेदी जी की लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाउ these are the few lines which is penned by Sohanlal Dwivedi ji. तो ह्यूमैनिटीज, करियर इन ह्यूमैनिटीज, अभी यस जी ने बताया कि साइंस और मैथ्स और नीट इन सब को बहुत बड़ा एग्जामिनेशन कह दिया है, एंड बहुत से बच्चे डर जाते हैं, एंड दे बिकम सो मच स्केयर्ड, दे कमिटेड सुसाइड while preparing for the IIT JEE. Sometimes they could not get through the examination IIT, sometimes they could not become the MBBS doctor. So what they do? So it is happening with the youth nowadays, very much prevalent.
तो हम लोग क्यों, और उसमें सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। मैं एक जनरल ये इंटरनेशनल फोरम है, इसमें आप देखिएगा, आप सब लोग एरोप्लेन से सब लोग गए होंगे, यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय प्लेन। आपने देखा होगा वहां पे एक पायलट होता है, मैथमेटिक्स इज नेसेसरी फॉर हिम, बट रिमेनिंग जो क्रू मेंबर्स हैं दे ऑल आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड। जितने भी है वहां पे होंगे क्रू मेंबर्स, दे ऑल आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। कोई भी आप उठा के ले लीजिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वही कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटीज को लोग जरूर सोचते हैं कि भाई डॉक्टर्स, इंजीनियर अनडाउटेडली बहुत चार्मिंग है, बट उसके अलावा भी हमारे बहुत बड़े चार्मिंग हैं। आप लोग 24 जनवरी को देखिएगा, कमला हैरिस इज गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ह्यूमैनिटीज में है, लॉ में है। कमला हैरिस, शी इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम तमिलनाडु। और देखिए, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है उसकी वो उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। शी इज गोइंग टू टेक एन ओथ। तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की है, और वो ज्यादा अच्छा उनका बैकग्राउंड भी नहीं रहा था, ठीक है। और सब लोगों ने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ द आईएएस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, deliberately or indeliberately, they are to study the humanity subjects, चाहे वो IITians हो, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो किसी के भी हो, उन्हें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट करने ही पड़ते हैं। देन ओनली दे कैन बिकम द पब्लिक सर्वेंट, तभी वो बन पाते हैं। और इसमें ज़्यादातर रेशो 80% अपने आर्ट साइड वालों का ही रहता है। जितने भी डीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, कमिश्नर्स होंगे, हैविंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, और उनका जो बैकग्राउंड होगा वो हमारा आर्ट साइड का होगा, ह्यूमैनिटीज का होगा। सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमैनिटीज, राइट। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, बीए और एमबीए की जरूरत होती है, उसमें ज्यादा किसी की जरूरत नहीं होती, सिंपल बीए और एमबीए। बट वी आर टू पॉलिश डेली, उसे पॉलिश करना, उस सब्जेक्ट को डेली पॉलिश करना है। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट में बहुत करियर एवेन्यूज है, बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव और हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे विल गेट। पब्लिक रिलेशन मैनेजर दोनों ही लगभग एक से ही हैं, इसमें भी आपको एमबीए और बीए की ज़रूरत होती है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट की बात आती है, आर्कियोलॉजिस्ट लॉट्स ऑफ पीपल आर फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे यहाँ से कुलश्रेष्ठ साहब भी थे, वो डायरेक्टर रहे। तो उसके लिए भी आर्कियोलॉजी, बीए इन आर्कियोलॉजी ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा करियर है, बहुत साउंड करियर है, बहुत ही मीन्स रिफाइंड करियर है, सोफिस्टिकेटेड करियर है आर्कियोलॉजी में। साइकोलॉजिस्ट, now the pandemic time is going on, pandemic and epidemic is going on, so lots of people were confined to the four walls of the houses. सब लोग घर की दीवारों में ही कैद रहे। most of the people or aged people or the children, they were very much depressed and dejected and ejaculated. तो उनके लिए भाई सबसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हुई। तो साइकियाट्रिस्ट के लिए हमें केवल साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी इज नेसेसरी, उसका हम सुपर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो डीयू से है और जामिया से है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे हम जा करके कर सकते हैं। बड़ा अच्छा और बहुत ही अच्छा करियर है इसमें। देन अनदर BFA एंड MFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। जितने भी आप देखते हैं स्केचेस, पुलिस डिपार्टमेंट में स्केचेस बनाते हैं, BFA वाले होते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, आगरा में ललित कला संस्थान है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है FA का, फाइन आर्ट्स का। और BHU, JNU, जामिया मिलिया, ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इवन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक अमेठी बहुत कोर्सेज ऑफर कर रही हैं उसमें फाइन आर्ट्स में, और बहुत ही लुक्रेटिव करियर है, बहुत ही अच्छा करियर है। हैंडसम अमाउंट ऑफ द सैलरी दे गेट, एंड वेरी फ्यू, द मोर ओवर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे गो फॉर दैट वन। बहुत ही कम लोग उसे करने में चाहते हैं, राइट। और इवेंट प्लानर, आजकल इवेंट प्लानर के लिए भी ह्यूमैनिटीज की ही जरूरत होती है। बैचलर डिग्री और द सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इवेंट प्लानिंग इज गोइंग ऑन दैट सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग। सो इवेंट प्लानर
जितनी भी मैरिजेस हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, जरूरी नहीं कि बच्चा भाई मेरा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, मैं उसे डेली उसे प्रेशराइज करूँ, ट्यूशन दिलाऊं। 20-20 हजार के लोग ट्यूशन दिला रहे हैं बच्चे को मैथमेटिक्स, और वो कहते हैं कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। और बच्चा भी कहता है सर मेरे पे नहीं हो पाता, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर। मेरे पास भी ये एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में, वो आते हैं, वो कह रहे हैं कि सर इस पर हो नहीं पाता है। मैंने क्या दिक्कत है उसे, क्या दिक्कत है? आप इसे ये दिलाइए ना, आप खुद 8 साइड के पढ़े हुए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आप आए हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, और अपने बच्चे के लिए मैथमेटिक्स के लिए प्रेशर डाल रहे थे जो व्हेन ही पास्ड आउट 10th क्लास। तो अल्टीमेटली उन्होंने बच्चे को ह्यूमैनिटीज दिलाई, और बच्चा ही हैज कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, और ही हैज टेकन एन एडमिशन इन DU। हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है। एंड अनदर फॉरेन लैंग्वेजेस, इनफैक्ट माय एल्डेस्ट सिस्टर, her name is Dipti Santosh Nair. She is my eldest sister, and she is an assistant professor in Kuset University, Kochi. और वो जर्मन लैंग्वेज की वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एंड यू वोंट बिलीव, थ्राइस एंड 4 टाइम्स शी हैज बीन टू जर्मनी। और फॉरेन लैंग्वेज का इतना अच्छा स्कोप है इन ऑल द एम्बेसीज, इन ऑल द एम्बेसीज, सारी एम्बेसीज के कहीं ना कहीं हर एक कंट्रीज के लोग होते हैं, इंडिया में भी हैं। कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज आप 12th क्लास के बाद देख लीजिए, but for that one base is very much required, that is English. English communication is very essential, indispensable and part and parcel. So one is to little bit command, कोई लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, इजी वे में हो जाती है उस पर कमांड। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ले लेंगे हम, अरेबिक है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, ये इतनी अच्छी इस समय बूम है इनका, एक बूम आया हुआ है इनमें। हमारा बहुत अच्छा लुक्रेटिव करियर है, ट्रांसलेटर की जॉब है किसी भी मंत्रालय में। ऑल द मिनिस्ट्रीज हैविंग वन ट्रांसलेटर, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, और बहुत एक एक ट्रांसलेटर जरूर होगा। इन एयरफोर्स आल्सो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, इन नेवी सर्विसेज आल्सो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, आर्मी आल्सो, आर्मी बेस सेंटर में भी ट्रांसलेटर की अलग से जॉब निकलती हैं। तो उन सब के लिए अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में बच्चों को सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री, कोर्सेज और नेट भी करा सकते हैं, PhD भी करा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। बट इन सब के लिए इंग्लिश को जरूर बच्चे को डेली पॉलिश करना है, डेली रिफाइन करना है। इंटरप्रेटर भी वही बात आ जाती है, बहुत अच्छा करियर है ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, और ये सब उसी पर ही बेस्ड है, फॉरेन लैंग्वेज पर। MSW इन द अदर अब बहुत ही कम होती जा रही हैं हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उसके अलावा क्या मिल रहा है हमें, यहाँ अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो रहा है, तो उधर हमारे गुजराती प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कंपनीज इतनी खोल दी हैं। तो सबसे अच्छा काम है कि हर कंपनी में लाइसेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एक लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, और उसके लिए MSW की रिक्वायरमेंट होती है, दैट ऑल्सो कम मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो उसके लिए बहुत इजी कोर्स होता है, बहुत इजी, इट इज द वेरी आई थिंक इजीएस्ट कोर्स as per I have seen, बहुत इजी कोर्स होता है। और हर जगह एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की जरूरत होती है, और MSW उसके लिए एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, बहुत इजी है, राइट। और उसके अलावा कुछ जैसे जीरोंटोलॉजिस्ट है, जीरोंटोलॉजिस्ट हमारा जर्मन कंट्री है, वहाँ पे एजिड पीपल बहुत ज़्यादा हैं, और अब हम देख रहे हैं कि डेथ रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें क्या है, एजिड लोग बहुत हो गए अब हमारे यहाँ। तो एजिड लोग हो गए हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई परेशानी आ जाती हैं। दे थिंक अबाउट देयर पास्ट, वो बैठे बैठे कुछ और अपने अंदर बातें करते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है आजकल के यूथ के लिए, जीरेंटोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो अगर वो BA करेंगे, और BA में कुछ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टेस्ट मुंबई, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसलिंग दिल्ली, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, रिनाउंड इंस्टीट्यूट। अगर हम जीरोंटोलॉजी में एडमिशन लेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पैसा गेन कराता है, ठीक है। So with this, I was given only for the 10 minutes time, Agrini ji, and with this I would like to say only the
2 lines of Swami Vivekananda ji. Arise awake, and stop not till the goal is reached. उठो जागो और जब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंचे। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा श्री विवेक कुलश्रेष्ठ जी का, निशी कुलश्रेष्ठ जी का, और अग्रणी जी के लिए जरूर एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। वो कंटेंट राइटर हैं एंड आई एम आल्सो द एडिटर, और एडिटर अभी एक इंटरनेशनल बुक हुई है, Word Through Poetic Sensibility, a congregation of global poets. I have compiled during the pandemic time, और 3 मैंने एडिट की हैं बुक, वो तीनों आपकी अमेजोन पे है। इन्हें कंटेंट राइटर को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। Even I am also getting a very handsome amount of royalty from the publisher as well as simultaneously whosoever is giving. 19 countries authors are there. इस बुक को जो मैंने एडिट किया है, कंपाइल किया है, 19 ऑथर्स हैं, तो उससे बहुत अच्छी रॉयल्टी मिलती है। और अग्रणी जी आप आगे बढ़िए, ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच विवेक सर, और रीजनल सेक्रेटरी प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, निशी मैम जी, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द डिग्निटरीज whosoever are there, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। उन्होंने दे हैव लिसन्ड टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। नमस्कार। Thank you so much. Thank you, Shrikant ji. Our next topic is media and entertainment, and next icon is Anuj Kulsrestha, a successful media and entertain entrepreneur based in Australia. He always acts with great vision and purpose of serving community. He is actively involved in organizing Indian festival fair, beauty pageants, talent contest, and support people in the community to grow and excel with his proficiency. A person who is always inspiring, motivating, and encouraging children to build their confidence and achieve their dreams. He received awards from promoting Hindi, best journalist, contribution to the community by world biggest NRI organization GOPIO, and Gaurav Sampar by PR of Rajasthan. He published in newspaper Hindi Gaurav and founder of Opera Media and Recreation Private Limited. He will speak about media and entertainment. So please welcome Mr. Anuj Kulsrestha. Yeah, थैंक यू please, निशी, Anuj. Yeah. थैंक यू, और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप लोगों के जो प्रयास हैं उनको बहुत सराह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहाँ पे न्यू कमर काफी कुछ सीख सकते हैं। और जैसे मेरे को टॉपिक दिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैंने अपनी पूरी लाइफ मीडिया में और एंटरटेनमेंट में ही बिताई है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब आदमी की सक्सेस और फेलियर वो उसका खुद का होता है। अगर वो फेलियर है वो अपने कारण से, अगर सक्सेस है तो उसमें लोगों का योगदान होता है, पर फेलियर में आदमी का 100% खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। पर लेकिन जब फेलियर की बात होती है तो लोग फेलियर दूसरों पे डाल देते हैं, कई कारण गिना देते हैं, और सक्सेस मिलती है तो आदमी 100% सक्सेस खुद को डेडिकेट करता है। पर मैं जो लोग हैं, यूथ है, उनको एक ही चीज बोलूंगा, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें पहले आप देखें, आप पूरा पेपर वर्क करें। अगर आप एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, अगर मीडिया में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आप 2 से 3 साल कहीं जॉब करें, वहां देखें कि काम कैसे होता है, पेपर वर्क कैसे होता है। क्योंकि मोस्टली आजकल मैंने जो देखा है 90% लोग बिजनेस करना नहीं जानते, केवल वो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास कोई कर रहा है, उसको देखा उन्होंने, उसके आइडिया को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, उनका खुद का ओरिजिनल कुछ नहीं होता। इस वजह से 90% लोग डूब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा कि एक बंदा एंटरटेनमेंट या मीडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, और वो क्या करते हैं, उसके आइडिया को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पर लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस बंदे
का आपने आइडिया कॉपी किए हैं, उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, उसका कितना एक्सपीरियंस रहा और उसके कितने रिसोर्सेज हैं। तो मैं यही कहूंगा न्यू कमर्स को, सबसे पहले आप अपना पूरा पेपर वर्क करिए, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, आप पे बैकअप क्या है। मोस्टली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मोस्टली लोग जैसे बिजनेस उन्होंने किया स्टार्ट, तो उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि उनको 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं 20 लाख वो जैसे तैसे इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर उन पे बैकअप नहीं होता। अगर आपको इन्वेस्ट करना है 20 लाख, तो आप पे बैकअप के लिए भी 20 लाख होने चाहिए, जब भी आप बिजनेस सरवाइव कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं फिगर का। तो ज्यादातर लोग अगर आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, पर बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा कि फेलियर को कैसे रोकना है। तो मैं ये इसी बात पे जोर देता हूं कि फेलियर क्यों हो, कैसे होता है लोगों का, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप फेलियर पे काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। लोग दूसरों की सक्सेस को देखते हैं और उसके आइडिया को कॉपी करते हैं और चल देते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिंदी गौरव है, ऑस्ट्रेलिया की पहली हिंदी मैगजीन है। जब मैंने स्टार्ट की थी तो लोगों ने कहा था कि हिंदी मैगजीन चल ही नहीं सकती। आज 10 साल हो गए, इसको 11वां साल है। पहली हिंदी मैगजीन है ऑस्ट्रेलिया की। इसके बारे में बहुत कम कुलश्रेष्ठों को पता है। ये भी मेरी मैगजीन है, सुपर मॉडल गिलेम एंड गिट्स, ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जाती है न्यूज एजेंसी पे। तो ये दो मेरी वो हैं, सुपर मॉडल गिलेम एंड गिट्स, जिसमें न्यू कमर मॉडल्स के बारे में हम पब्लिश करते हैं, और इसमें हम अपने इंडियन कल्चर को और हिंदी को प्रमोट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग आते हैं मेरे पास, मेरे से आइडिया लिया कि कैसे स्टार्ट किया, इवेंट कैसे करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे जाते हैं। आधा आइडिया लिया मेरा और वो सोचते हैं कि अब हम बहुत कुछ कर लेंगे, और वो स्टार्ट करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता होगा। वो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं 2010 से हिंदी गौरव चला रहा हूँ, तो मेरे को काफी बच्चे अप्रोच करते हैं कि सर आप इतने सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, इतने मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं, तो हमें भी इस फील्ड में जाना है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो एक सज्जन ने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने उनको पूरा गाइड किया, उनको हिंदी गौरव इंडिया का हेड बनाया और हिंदी गौरव लॉन्च किया हमने इंडिया में। बहुत उसमें आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, अमन तिरखा, जिसने बहुत हिंदी गाने गाए। अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे उन्होंने काफी बॉलीवुड के गाने गाए। हुक्का बार का गाना गाया है, जो प्रेम रतन धन पायो, जो वो गाने गाए उन्होंने। तो हमने हिंदी गौरव खोला। तो हिंदी गौरव खोलने के बाद उन सज्जन ने क्या किया, मुझे बिना बताए हिंदी गौरव इंडिया में रजिस्टर्ड कर दिया, बिना बताए फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड के उनको क्या लगा कि मैंने उनको सिखाया है, वो बहुत है उनके लिए, वो बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनका मोटो लोगों के साथ फ्रॉड, मीडिया में आना उनका जुनून नहीं था। मीडिया में आना उनको लोगों से पैसे बनाना था मीडिया से। तो उन्होंने हिंदी गौरव इंडिया में रजिस्टर्ड कर लिया, फ्रॉड किया। मुझे बहुत बाद में पता चला, फिर उन्होंने दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड किया। आज वो सज्जन जेल में। तो मैं एक यूथ से यही बोलूंगा कि आप अपने जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने पेपर वर्क के साथ जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, छोटी छोटी चीजें जानिए, है ना। गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं हमको उस फील्ड में। आप जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों से संपर्क करें, उनसे आप एडवाइस लें, जितनी एडवाइस ले सकते हैं। केवल ये नहीं कि आपने किसी से एक बार बात की, उसकी आइडिया ली और आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आप जिस फील्ड में जाओगे उसमें पहले से बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जिनसे आपको compete करना पड़ेगा। और जिंदगी में मैंने जो चीज सीखी है, ऑनेस्टी बहुत काम आती है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और अपने फंड को मैनेज करते हैं, तो आपको लाइफ में कोई भी पीछे नहीं कर सकता।
मीडिया और एंटरटेनमेंट में इतने ज्यादा आपके रास्ते खुल चुके हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 90s में, जब बहुत कम चांसेस थे मीडिया और एंटरटेनमेंट में खुद का खुलने के लिए, पर लेकिन जब से इंटरनेट आया है बहुत ज्यादा रास्ते हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा फील्ड है जिन पे आप काम कर सकते हो। अगर किसी को एंटरटेनमेंट एंड मीडिया में इवेंट्स में काम करना है, तो अगर किसी कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को कॉल कर सकता है। विवेक जी हैं, विवेक जी से मैं नंबर ले सकते हैं। और मैं विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि विवेक जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि फेलियर किस कारण होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो फेलियर पर जरूर फोकस करें कि फेलियर लोगों का किस कारण होता है। एक फंड मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए आपको ए से लेके जेड तक पूरा काम आना चाहिए उस फील्ड में जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ रहे हो कि ये स्टाफ को आपको खुद नहीं आता, अगर सोचते हो कि स्टाफ के भरोसे काम कर रहे हो, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कॉफी की स्टोर ओपन करते हो तो आपको कॉफी बनाना आना चाहिए, आपको कॉफी सर्व करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा, आपका स्टाफ आपको बेवकूफ बनाएगा। इसलिए आप कोई छोटा सा भी काम करें तो उसके बारे में पहले जाने। और सफलता एकदम नहीं मिलती। जो लोग एकदम अमीर बनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा वो कभी अपना बिजनेस भी ना खोलें, क्योंकि बिजनेस सक्सेस होने में आपको 3 से 5 साल लगते हैं, जिसमें आप खुद को कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं खुद को अपने को सफल मानता हूँ, अब मैं सक्सेस हूँ। 3 से 5 साल में आपकी सफलता लोगों को दिखती है। और धैर्य बहुत जरूरी है। आप धैर्य बना के चलें, कई बार असफलता मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आजकल नए जो न्यू कमर है उनको देखता हूँ, वो बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं। ऐसा ना करें, एक लाइन पकड़ लें, कोई भी लाइन। 1 साल में सफलता नहीं मिलेगी, 2 साल में नहीं मिलेगी, 3 साल में नहीं मिलेगी, 4 साल में नहीं मिलेगी, आपको 5वें साल में 100% सफलता मिलेगी। एक लाइन अगर आपने पकड़ के रखी है। अगर आपने 6 महीने में अगर लाइन चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, आपको गारंटी देता हूं आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो मैंने टिप्स दिए हैं, और मेरे पे भी टाइम की पाबंदी है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर किसी को कोई भी एडवाइस की जरूरत है, मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। और निशी जी, मैं आपको करेक्ट कहता हूँ, आई एम ओनली इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया जिसको हिंदी प्रमोट के लिए पार्लियामेंट में अवार्ड मिला हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अभी तक जितने लोगों ने बातें की, जो भी बातें बोली, एब्सोल्युटली आई एम 100% श्योर ये सारी बातें उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बोली हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? नाउ माय पॉइंट इज, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द स्कोप ऑफ आईटी। हम लोग सब जानते हैं करेंटली जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम आईटी ने हम सबको केवल इसी मीडियम से हम सब जुड़े हुए हैं। You also understand that, right? So currently अगर मैं बात करती हूँ आईटी की या आईटी के स्कोप की, हर तरह से, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, हमारा फूड डिलीवरी सिस्टम हो, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, या कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर इस टाइम आईटी से अनछुआ नहीं है, right? So when I started my career, and in fact I should tell you from the beginning, I'm a BTech graduate from IT. जब मैंने आईटी से पास आउट किया इन 2006, आप सबको पता होगा, याद होगा, 2006 में सत्यम डूबी थी। ऐसे ही बोला जाता है, सत्यम का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। एंड उस टाइम बिगेस्ट रिसेशन उस टाइम का हम लोगों को हिट किया था। इवन दो आई गॉट प्लेस्ड इन एन आईटी कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई जॉइंड दैट कंपनी। देन फ्यू मंथ्स के बाद ही ले ऑफ्स होना स्टार्ट हो गए, एंड ह्यूज लेऑफ्स। मतलब हम लोग के मैनेजर को निकाल दिया गया, 60 लोग एक साथ टीम में से ले ऑफ हो रहे थे। तो दैट वाज द टाइम जब हम लोग को रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार ये सही नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अगर हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, दूसरी कंट्रीज पे,
आईटी का डाउनफॉल आया यूएस में, इफेक्ट हुई हमारी कंट्री, इफेक्ट हुआ इंडिया, पूरी तरीके से इकोनॉमिक डाउनफॉल आया। तब भी रियलाइज हुआ कि नहीं, वी शुड डू समथिंग ऑन आवरसेल्व्स। व्हाई दिस यूएस मार्केट affects us so much? That is the biggest question, because we are serving them, you know. हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा है rather than प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, राइट? हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बातें करते हैं, हम आज गूगल पे सब लोग जुड़े हुए हैं, ऑल दीज आर यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स, राइट? ये सब प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं। हमारे यहाँ भी गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, बट वी आर सर्विंग देम, आवर इंजीनियर्स, आवर एम्प्लॉइज ओवर देयर। हम लोग को जरूरत है इस टाइम स्टार्टअप क्रिएट करने की, बहुत जरूरत है आईटी बेस्ड स्टार्टअप क्रिएट करने की। सो व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारी चीजें समझी, बहुत कुछ यू नो फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन्स देखे, बिकॉज जब आप जॉबलेस हो जाते हो अचानक से, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इकोनॉमिकली हमें कैसे आगे बढ़ना है, चीजें कैसे आगे बढ़ानी है। देन करियर स्विच करना ही मात्र ऑप्शन रह जाता है। कॉलेजेस में उस टाइम आईटी कॉलेजेस का बड़ा स्कोप था। देन आई स्टार्टेड यू नो लेक्चरशिप करना स्टार्ट किया कॉलेज में, आईटी कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया वहां पे, क्योंकि मुझे आईटी का एक्सपीरियंस था, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, एक एज मिला जो मैं स्टूडेंट्स को ये चीज बताने की हर बार कोशिश करती थी कि जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग rather than the reality. आप रियलिटी में जब आप जाते हैं, आप जब काम करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आप वो चीज पढ़ ही नहीं रहे हो जिस चीज से रिलेवेंट है हमारा इंडस्ट्री। देन वो सब करते करते आई स्विच्ड इनटू यू नो करियर काउंसलिंग। समहाउ फील होने लगा कि नहीं, आई कैन हेल्प यूथ, आई कैन हेल्प पीपल, आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द गैप बिटवीन यू नो योर एजुकेशन एंड द रियल वर्ल्ड। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। देन somehow you know कहते हैं कि शायद मुकद्दर में लिखा था, इसलिए I jumped into recruitment services. So I started my career into recruitment services around 10 years back now. एंड वहाँ पे जब एज अ इंटर्न ज्वाइन किया, एक छोटा सा रिक्रूटमेंट का काम करना स्टार्ट किया, तो पहले फील होता था कि मैं टेलीकॉलर बन गई हूँ, शायद पूरे दिन कॉल लगाती रहती हूँ, लोगों से बात करती रहती हूँ, आपकी जॉब लगवाने की बात करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ आई एम नॉट ओनली अ टेलीकॉलर, आई एम गिविंग देम यू नो इनसाइट्स अबाउट देयर जॉब, आई एम गिविंग देम यू नो अ हेल्प, अ गाइडेंस। सो I never felt like कि मैं रिक्रूटर हूँ तो मैंने केवल रिक्रूटमेंट किया है, आपको पोस्टमैन की तरह आपके डिटेल्स लिए एंड देन आगे फॉलो किया। हमेशा उन्हें एक सही गाइडेंस देने की कोशिश की। एंड देन समथिंग हैपेंड, यू नो, प्रमोशन हुआ, आई moved into CXO level hiring. CXO, I don't know आप लोगों में से इस टर्म को लोग समझते हैं या नहीं समझते। CXO बोलते हैं चीफ, X is stand for technology या operations या management या marketing, anything. CEO, CTO, कंपनी के CMO, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लेवल की पोजीशंस होती है, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं, उस लेवल की हायरिंग पे हम आ गए। उसी टाइम पे बूम हुआ यू नो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का हमारे इंडिया में, ई कॉमर्स एकदम से बूम पे आया, स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट स्टैब्लिश हुआ, मिंत्रा स्टैब्लिश हुआ, आपका पेटीएम, यू नो पेटीएम वाज वन ऑफ माय क्लाइंट जिनका पूरा आईटी सेटअप मैंने किया था। तो आई हैड अ वर्ड विद जो उनके ओनर थे विजय शेखर, उनसे मेरी डायरेक्ट मीटिंग हुई, उनसे बात किया, अंडरस्टैंड किया उनके टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स को, उनका पूरा रिक्रूटमेंट टीम सेटअप किया। एंड देन बीइंग इनटू यू नो सम अदर प्लेटफॉर्म, मैंने ये सब करना जब स्टार्ट किया, देन आई इनिशिएटेड कि अपना खुद का जॉब, अब दिस इज द राइट टाइम, आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप कर सकती हूँ। तो इट्स बीन अराउंड 6 years, 2014 में आई स्टार्टेड अप माई ओन कंपनी। घर से काम करना स्टार्ट किया, छोटा सा इनिशिएटिव था, मैंने उसमें ज्वाइन करवाया उन लेडीज को जिनको मैं जानती थी कि बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट ड्यू टू सम रीजन उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा। तो मैंने ऐड किया मेरी कजिन्स को, मेरी फ्रेंड्स को, जो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों या अपने इन-लॉज के कारण आज जॉब में नहीं है, बट दे परस्यूड गुड करियर, वो लोग अच्छे स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे, यू नो, अपनी जॉब वो लोग करना चाहते थे, बट somehow due to some difficulties in their current life वो लोग नहीं कर पाए। तो I added these ladies। तो फर्स्ट मेरा जो स्टार्ट हुआ वो 12 लेडीज के साथ में हुआ, उन 12 लेडीज के साथ में हुआ, जिन्हें ड्यू टू सम सर्कमस्टेंशियल इश्यूज उन लोगों ने अपना जॉब छोड़ा था।
राइट? तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक अराउंड 6 years बैक, तब मेरे पास केवल 2 क्लाइंट्स हुआ करते थे. राइट नाउ आई हैव गुड क्लाइंटल, सब बहुत अच्छा है. एंड मीनवाइल वी स्विच्ड इनटू IT also. मैंने अपना IT कंपनी फॉर्म किया, IT का काम करना स्टार्ट किया. IT का नॉलेज पहले से थी, बट डिफरेंट लोगों से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई कि IT में और क्या एडिशनल हो सकता है. तो देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो हमने खुद डेवलप किए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे करेंटली भी वी आर वर्किंग. सो अगर मैं बात करूं कि भाई हम लोग को स्कोप इन IT क्या है, इंडिया में IT का स्कोप क्या है, देयर इज अ ह्यूज स्कोप, देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस थिंग्स व्हिच वी कैन डू इन IT, राइट? सो IT को अगर हम केवल रिलेट करते हैं कोडिंग से, नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट जस्ट कोडिंग, इट्स एवरीवेयर. IT ने आप सभी लोगों को सच में अंदर तक छुआ हुआ है. आपका AC, आपका फ्रिज, आपकी हर चीज आज के टाइम पे IT से कनेक्टेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, राइट? सो आप मोबाइल्स पे हैं, आप लोग सब गूगल पे कनेक्टेड हैं, आप लोग सब IT यूज कर रहे हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री की या एजुकेशन इंडस्ट्री की, सो आई मस्ट से आने वाला टाइम एजुकेशन इंडस्ट्री में IT का बूम लाने वाला है, राइट? हम लोग सब आज देख रहे हैं, जो टीचर्स ने कभी शायद कंप्यूटर छुआ नहीं होगा, वो लोग सब लेक्चरर्स बने हुए हैं IT के थ्रू. आज सभी लोग ऑनलाइन मटेरियल तैयार कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, उन्हें अपलोड कर रहे हैं. दे आर यूजिंग n number of platforms. कोई गूगल मीट के थ्रू करता है, कोई टीम्स के थ्रू करता है. देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं. एंड एजुकेशन सेक्टर जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हिट होने वाला है IT से, राइट? और पीपल आर ओपन टू एक्सेप्ट दिस चेंज. करंटली जो सिनेरियो बन गया है, आई डोंट नो ये चीजें अच्छी हुई है या बुरी हुई है, बट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज. इट इज गोइंग टू बी अ गुड चेंज इन अ दैट वे. हम लोग IT में बहुत कुछ कर सकते हैं. इंडिया में बहुत स्कोप है, बहुत टैलेंट है, पीपल आर रियली टैलेंटेड, but I don't know why they are into service industry rather than into startups and doing into product development, something like that. So ideas की कमी नहीं है, people can do n number of things. And youngsters के लिए of course I would like to say this thing कि yes, youngsters के लिए there's a huge scope in IT, right? मैं बात सुन रही थी यश की. यश is such an inspiring kid. He has faced a lot of challenges, lots of problems in his entire education time, and then he met with accident and other things. But yes, I must say उसने बहुत अच्छे से अपने उस नेगेटिव पार्ट को पीछे छोड़ते हुए आगे लेके गया. एंड अगेन आप अगर देखोगे उसका भी स्टार्टअप, इट इज रिलेटेड टू IT, right? So we all are touched here by IT. So scope in IT is tremendous. डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप है. और अपार्ट फ्रॉम दिस आई मस्ट से, अगर किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग IT जॉब्स या उनका रेज्यूम मेकिंग में, देयर आर डिफरेंसेस. एक टाइम होता था जब हम लोग बोलते थे कि जिसका 10 पन्ने का रेज्यूम है, दैट्स मार्वेलस रेज्यूमे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें. लेकिन आज टाइम चेंज हो चुका है. चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर ही क्यों ना है, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका रेज्यूमे केवल 1 पन्ने का होना चाहिए, 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज ट्रेंडिंग एंड देन चेंजिंग एवरी डे. एक टाइम डिफरेंट था जब आपको सारा डिटेल लिखना होता था अपने रेज्यूमे में. आज वो टाइम नहीं है. आज आपको केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स देने होते हैं, और देन उसके बेसिस पे रिक्रूटर्स जज करते हैं कि ये काम का CV है या नहीं है, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो पर्सनली मैं लोगों को बता सकती हूँ, 1-to-1 कॉल पे आ सकती हूँ. और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके लिए मैं करेंटली काम कर रही हूँ. दीज क्लाइंट्स आर बेस्ड इन इंडिया, बेस्ड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो रिक्रूटमेंट सर्विसेज में yes, I have good knowledge in recruitment, and IT recruitment is my main forte. Apart from that, अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई काउंसलिंग की बात करनी है या किसी को गाइडेंस की बात करनी है, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प. सो वाया दिस मीडियम आई कैन डेफिनेटली लेट यू नो ऑल कि आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प माय सोसाइटी.
जिस सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है इतने प्यार से अपने इस समाज के अंदर, आई एम डेफिनेटली विलिंग टू हेल्प यू ऑल. So whosoever is looking for a job change, whether they are experienced or they are fresher, they can definitely get in touch with me, right? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Prerna Prerna ji. ji. Thank you, Prerna ji. Scale and home businesses. इसमें हमारे साथ हैं रितु कुलश्रेष्ठ जी, जो कि ये बताएंगी कि स्मॉल स्केल बिजनेस हम किस तरह से अपना वो कर सकते हैं जिससे कि लोग मोटिवेट होंगे. तो वो अपनी स्पीच में कहना चाहेंगी. और मैं रितु जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि रितु जी इज अ प्राउड होम मेकर, a social worker and the educationalist. She did graduation in computer application and English literature, followed by master in social work. She was honored by then Governor of Uttar Pradesh, late Shri Vishnukant Shastri ji, in first year of PG at Bundelkhand University, Jhansi. She was a gold medalist in MSW and was honored for the same by then President, late APJ Abdul Kalam, in 2004. She continued to contribute in upbringings of society as an active member of Air Force Wives Welfare Association, AFWWA. She is giving wings to her creativity by making beautiful decorative wax candles, diyas, candles holder, etc. Her creativity is utilized to light up interiors as she has her homemade items for sale at IAF Shangdi shop run by AFWWA under the concept of vocal for local. She will speak about small scale home business. So please welcome Mrs. Ritu Kulshrestha. Thank you so much, निशी जी. Thank you so much. And सबसे पहले मैं ABKS के मंच पर उपस्थित सभी को यथा योग्य अभिवादन करती हूँ. इस संघ के समस्त कर्मठ सदस्य जो कुलश्रेष्ठ समाज की उन्नति के लिए सदा प्रयासरत हैं, तो आपकी पारखी नजर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस योग्य समझा कि मैं अपने समाज के युवा वर्ग को कुछ समझा सकूं, कुछ उनका मार्ग प्रशस्त कर सकूं. और आज के समय में युवा इतना लकी है, इतना सारे उसके पास ऑप्शंस हैं कि कई बार लगता है कि ये सारे ऑप्शंस हमारे टाइम में क्यों नहीं थे. हालांकि मैं खुद अपने बचपन से लेके आज तक काफी क्रिएटिव रही. जो भी काम मैं करती रही आज तक उन चीजों के टच में हूँ. और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में जितना हम, जैसे हम लोग काइस्ट के बच्चे या फिर कुलश्रेष्ठ, हम खुद ही अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चों को कि वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, साथ के साथ अदर एक्टिविटीज में भी आ जाते हैं. तो उस तरह से मैं भी बचपन से हमेशा करती रही. और समाज ने कुलश्रेष्ठ सभा में जहाँ हम लोग पोस्टेड थे वहाँ हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमने करते रहे बचपन से आज तक. तो एक्चुअली स्पीकिंग, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे लगा कि अभी तक इतने सालों से, मतलब पूरा मेरे पिछले 17-18 साल का जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसमें मैं काफी मंचों से जुड़ी. लेकिन आज जब आप सबके साथ, अपने कुलश्रेष्ठ भाइयों के साथ और अपने युवा वर्ग को कुछ बताने के लिए आई तो मेरी खुशी बहुत ज्यादा थी. सब लोग मुझे अभी मैसेज आ रहा है, आप कितना हंस रहे हो. तो मैंने कहा वो हंसी अंदर नहीं रह पा रही है, वो बाहर आ ही रही है निकल के, वो नेचुरल है, रुक नहीं पा रही है, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है. क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फौजी उसमें आने के बाद ना, कभी कहीं पोस्टिंग्स होती हैं, कभी कहीं होती है, तो हम थोड़ा सा फिर फोन पर ही रह जाते हैं कई बार ना. पर लकीली आपके इस मंच के द्वारा हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी. एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे छोटे से जो विचार हैं, जो मैं हमेशा से फॉलो करना चाहती हूँ अपने लिए और अपने समाज के लिए, वो सब आगे भी जाएगा. सो जस्ट एक छोटा सा वीडियो, just have a look on this small video, बहुत छोटा सा.
Jai Hind. Be Atmanirbhar to safeguard our border. आत्मनिर्भर भारत अभियान वोकल फॉर लोकल से ऐसा लगा जैसे मेरे मन की बात सभी समझ गए. And being Air Force officer's wife and a true Indian, I'm a strong supporter of vocal for local. The proud ladies married to air warriors of Indian Air Force are addressed as Sangini. Any innovation, whether it's small or big, is shared with all the Sangini of Air Force Station, so as to benefit all. And therefore, all the Sanginis available in the station are benefited by getting the true Indian handmade stuff within range supplied by me. Since the concept of candle making and diya painting is recently introduced in our station, as of now, this homemade small industry is run by me only. In due course of time, many ladies, Sanginis, will start associating with me. So this is little about me and what I'm doing these days. So सबसे पहले मैं अपने यूथ को ये बताना चाहूंगी कि please be positive and be confident about your studies because हम काइस में तो हमें पता है, हमारे पूरे समाज को पता है कि पढ़ाई का एक अपना ही महत्व है. तो हम ये मान के चलते हैं कि पढ़ाई तो हमें करनी है एंड उसका हम कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलता है. बस हम उस चीज को थोड़ा सा इस तरह से और लेके चलते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने क्रिएटिविटी को और साथ में लेके चलिए. आज के टाइम में इंडियन मार्केट में जो हमारे यूथ क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है और उसको जिस तरह से मेड इन इंडिया मुहिम के तहत, या जैसे आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ, जैसे आपने देखा वीडियो में, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडियन प्रोडक्ट एंड आई ऑलवेज वेर एवर आई गो आई ऑलवेज प्रमोट वहाँ का लोकल स्टफ. जैसे हम लोग जब JN के रीजन में पोस्टेड थे तो आई वेंट टू द इंटीरियर. वहाँ पर जो वहाँ के हाथ से काम करने वाला काम रहता है ना, जैसे पेपर मिशी वाला हो गया या जो और छोटे छोटे काम हो गए उनके हाथ के, तो मैं वहां से खुद लेकर आई एंड मैंने इफको टाउनशिप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर, मयूर विहार में दीदी के यहाँ पर, ऐसे मैंने कुछ गिफ्ट किए, साथ के साथ वो सेल भी हुए. तो जो वहाँ के उधमपुर के जो एक्चुअल वर्कर्स थे उनको वो एक्चुअल अमाउंट भी मिला. जब मैंने उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी आई न्यू कि उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो जब मैं शोरूम में जा रही हूँ वो मुझे ऑलरेडी 10 टाइम्स एक्स्ट्रा मिल रहा है और ये जो वर्कर्स है ये तो ऑलरेडी इतना कम मांग रहे हैं, तो दे वर ऑल्सो हैप्पी. तो माई पॉइंट ऑफ व्यू जनरली गोज दैट वे कि आप जो भी काम कर रहे हो आपके साथ साथ आपकी सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए भी बेनिफिशियल हो. तो यहाँ पर बस मेन चीज है कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी क्रिएटिविटी को साथ में लेके चलेंगे तो हो सकता है जो आपको अभी लग रहा है कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है या स्मॉल अर्निंग है, वो आगे चल के शायद मेन स्ट्रीम के लिए भी आपको हेल्प कर दे या इंडस्ट्री बन जाए. जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने जैसे MSW किया, आई वाज ऑनर्ड, गोल्ड मेडल, एवरीथिंग. I have worked with Accenture, Bangalore, Camfort. उसके बाद I have visited this Taragram. Then I have worked with medical colleges. Then as a principal, I have worked with Air Force School. Then TGT KV many times in different stations. Then I have worked with Krishna College of Education and Sports at Agra as well. I was taking B.Ed classes there. तो पूरा सब कुछ किया, खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाया, सारा सोशल वर्क में किया, लेकिन जो कहीं छुपी हुई क्रिएटिविटी थी उसको मैंने जिंदा रखा और हमेशा कोशिश की कि उसको मैं साथ के साथ करती रहूं और हो सके तो उसको बेनिफिट कराऊं सबको. यहाँ पे कुछ मैं आइडियाज लेके हमारे यूथ के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं. ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग या सारे ही कुलश्रेष्ठ परिवार बहुत अमीर हैं, या ऐसा नहीं है कि सारे ही बहुत गरीब हैं. तो मैं कुछ मीडियम उसके कुछ उनके लिए आइडियाज और जिस तरह से वो उसको आगे अडॉप्ट कर सकते हैं वो कुछ छोटे छोटे मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट ऑल आज का यूथ कैन अडॉप्ट अलोंग विद द जॉब्स एंड स्टडीज.
to increase their income, and साथ के साथ increase their income, and they can for later on they can adopt it as a main business also. जैसे there is a list of some profitable small scale businesses, yoga instructor, but always remember we always need a proper qualification and certification for few things. And in this list I have included some manufacturing unit ideas also. So both ways you can have a look of this list, and if it is required I can give this PDF to the concerned person so that they can rotate it to the society also. गेम पार्लर, आइसक्रीम, मैं सारे बोलती नहीं हूँ, मे बी अब टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा होगा, तो वी कैन लुक इनटू इट, and these may be suitable to anyone of us irrespective of the education also. You just need to have passion towards running the business and lots of love and respect for the society. Here I'm giving you a list so that just go through of it, and it may be pretty profitable for you and for the society as well. Like here one point I'll explain, seasonal business. These days seasonal business is very much coming up, and when we start some small scale business, so we can work according to that. Like कोई भी हम इंडिया में तो हमारे काफी सारे festivals हैं, तो उसके according you can start and you can turn your business in that direction also. या फिर weather wise we are pretty rich, हमारे इतने weather change होते रहते हैं, तो that also we can do. चॉकलेट मेकिंग हो गया, हॉबी सेंटर्स होते हैं जहां पर आप अंडर वन रूफ आप बहुत सारी एक्टिविटीज रखते हैं, तो दैट आल्सो यू कैन स्टार्ट. मेकअप सैलून, वहां पर सिर्फ आप मेकअप का ही, या फिर इससे जो ट्रेडिशनल ब्यूटी सैलून्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, दैट यू कैन डू. ब्लॉगिंग इज आल्सो प्योरली होम बेस्ड दिस business you may say, or it requires very little investment. You should know the writing skills and technical knowledge about it. हमारी अग्रणी जी बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं ये, तो ये भी हमारे बच्चे या हमारे यूथ साथ के साथ ले सकते हैं और अग्रणी जी से भी गाइडेंस ले सकते हैं. फोटोग्राफी में या अगर फोटोग्राफी भी है तो उसके लिए बस वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर हाई डेफिनेशन कैमरा. तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें ध्यान में रख के हम अपनी पढ़ाई और जॉब्स के साथ साथ स्मॉल स्केल बिजनेस में वी कैन वर्क. प्रोविजन स्टोर्स, कस्टमाइज्ड गिफ्ट, ये भी आजकल न्यू ट्रेंड आ रहा है. बेबी सिटिंग एंड डे केयर, ये तो भी नो. फूड सप्लाई, एथनिक फूड सर्विसेज का भी आजकल because of westernization of the culture, the ethnic food is getting extinct, and very few people can cook authentic ethnic food. If you have this art, you can always start and you can deliver it to home also. So this way. फिर हिंदी लैंग्वेज क्लासेस, आज के टाइम में जैसे इंग्लिश को काफी ज्यादा हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, उस पर काफी ध्यान देते हैं. तो जैसे अभी मेरा रिसेंट जो मोटिव चल रहा है स्टेशन में, आई एम प्रमोटिंग हिंदी अलॉट, बिकॉज जब से मुझे यूपी बोर्ड का रिजल्ट पता चला लास्ट ईयर का कि वहां पर इंग्लिश से भी ज्यादा हिंदी में बच्चे फेल है, तो आई वाज रियली हर्ट विद दिस थिंग कि अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट में ऐसे हो रहा है तो फिर अदर स्टेट्स का क्या हाल होगा. एंड वन मोर एग्जाम्पल हियर आई विल गिव इन, जल्दी से बता देती हूँ सारा. जब वी वर पोस्टेड टू साउथ, डीप साउथ ऑफ इंडिया, वहां पर आई हैव रियलाइज्ड कि अब क्योंकि केवीज है या एयरफोर्स स्कूल से तो हिंदी तो पढ़ाई जाएगी, तो वहां पे चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ वर विलिंग टू लर्न हिंदी, बट वहां पे टीचर्स नहीं थे हिंदी पढ़ाने के लिए ना. व्हेन दिस थिंग कम टू मी, देन आई हैव डिस्कस विद दिस थिंग विद आवर फर्स्ट लेडी. So we have started the Hindi classes, Hindi language classes. So what we did, we have appointed two teachers, and next day we got the entries for the Hindi classes. तो वो एक टीचर का भी अर्निंग बढ़ा, एंड हिंदी लैंग्वेज वहां पर लोगों ने सीखना शुरू किया. एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं एक बार वहां इंस्पेक्शन के लिए गई क्लास में, तो आई हैव रियलाइज्ड कि वहां पर एक बहुत एजेड, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लेडी वहां बैठे हुए थे. तो मैंने कहा मैम आप पढ़ने, मतलब आप किसी का वेट कर रहे हैं? तो उनके हाथ में मैंने कॉपी देखा,
तो मैंने कहा अच्छा आप एंट्री करवाने आए हैं? तो उनकी बहू आई, उन्होंने बोला मैम मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों ही हिंदी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और हम हिंदी सीखने आए हैं। सो चीजें लोग चाहते हैं बट जब अवेलेबिलिटी नहीं होती तो फिर वो नहीं कर पाते। तो हिंदी लैंग्वेज मतलब सी ये सारी चीजें मैंने अपने मन से बनाई हुई है और एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन माय व्यू हिंदी लैंग्वेज क्लासेस में आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर आवर यंगस्टर्स। बाकी तो हम फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट करते ही हैं बट अपनी मदर टंग को भी वी शुड प्रमोट। फिर ये बाकी के हैं, हेल्थ क्लब्स हो गए, सोप मेकिंग हो गया, म्यूजिक क्लासेस हो गए। एज मिसेस रश्मि कुलश्रेष्ठ इफ्को में है, वो म्यूजिक क्लासेस ले रहे हैं। वास्तु कंसल्टेंट है, होम ट्यूटर है, हम में से कितने लोग शायद ले रहे होंगे। बट ये अगर वास्तु कंसल्टेंट है और आपको थोड़ा नॉलेज है तो दिस ऑल्सो वी मे स्टार्ट। मीन्स मेन चीज है कि आपको साथ के साथ यू कैन एनहांस योर थिंग्स एंड स्मॉल स्केल पे काम करते करते यू कैन वर्क फर्दर ऑल्सो। फ्रीलांस राइटर हो गए, स्पाइस मसाला, डाइट फूड शॉप एंड सप्लाई, लॉन्ड्री शॉप फॉर सर्विसेज। लॉन्ड्री शॉप का भी एक अच्छा आइडिया मुझे लगा, ये मैंने एक दो स्टेशन पे देखा था। उन्होंने एक रूम में 3-4 वॉशिंग मशीन्स रखी हुई थी, आप आइए अपने कपड़े खुद ही वॉश कीजिए और चले जाइए। तो दिस ऑल्सो वी कैन डू। कोई इस चीज को भी अपने साथ में एक स्टार्टअप ले सकता है और दे कैन अपॉइंट 1 or 2 हेल्पर्स, तो दे कैन इवन डिलीवर ऑल्सो। तो वो चीज भी वी कैन डू। डेकोरेटर्स, जैसे ये जो इसमें मैंने फोटो लगाए हुए हैं, दीज आर दी ओरिजिनल डेकोर फोटोग्राफ्स जो आगरा में हमारे रिलेटिव्स हैं, कीर्तिका सपनिल, उन लोगों का ये डेकोरेशन का है। तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम ऑल्सो। तो डेकोरेट, और जरूरी नहीं है हम बड़े ही स्केल पे करें, छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, है ना, तो उन सब पे भी वी कैन डू। टिफिन सर्विसेज वी मस्ट बी नोइंग, टी कॉफी, मोबाइल, फूड कोर्ट, पेपर बैग अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग पॉली बैग्स। तो पेपर बैग का बिजनेस इज प्रिटी गुड, दैट ऑल्सो वी कैन स्टार्ट। उसके लिए हमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी यूज करना पड़ेगा, तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। आइसक्रीम कोन्स, एवरीबडी स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेस विच वी कैन स्टार्ट एंड बहुत छोटे उससे ये शुरू हो सकता है। प्लांट्स एंड प्लांटर्स आई एम पर्सनली डूइंग, तो ये चीज भी है। फाइनेंशियल प्लानर का भी अगर फाइनेंशियल नॉलेज है, जैसे हमारे तो यहाँ पर श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ जी है, तो हम उनसे पूरा आइडिया लेते रहते हैं इस चीज का। तो our youngsters may also take his advice and further they can think about it. Now I'll explain, मैं जल्दी से थोड़ा कर रही हूँ so that सबका समय वो ना हो, शुरू में काफी टाइम गया है। There are some points regarding startup of small scale businesses, जैसे जब आप शुरू कर रहे हैं, further I'll tell, ये सब मैंने अपना सोच के थोड़ा सा किया, जो मैंने अपना, जो मैं जैसे कर रही हूँ, those points I have included here. Get more experience, knowledge and training. See, कोई भी काम आपको करना है तो उससे पहले आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसे मैंने अगर कैंडल्स एंड दियास का काम शुरू किया तो उससे पहले मुझे उसका कम से कम 18 से 19 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन दोज डेज आई वाज मेकिंग कैंडल्स, इवन बिफोर माय एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर से भी पहले आई वाज मेकिंग कैंडल्स। तो आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, देन ओनली नाउ आई हैव स्टार्टेड this way. So I know all in and out of making this, so that ways I have started, because competition इतना है बाहर कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपको उस चीज के बारे में पूरी पढ़ाई लिखाई पहले ही कर लेनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, then we should start. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप जो भी करते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट बना के रखिए, अपने पास रखिए, सो दैट आप उसका जितनी भी अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें आपको चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। सोर्स ऑफ फंड्स, वैसे तो स्मॉल स्केल जो भी बिजनेस होते हैं वो घर के ही उससे हो जाते हैं, बट फिर भी जब आप उसको और बढ़ाएंगे तो यू शुड नो सोर्स ऑफ फंड्स ऑल्सो। डिसाइड योर लोकेशन, गेट योरसेल्फ टैक्स रजिस्टर्ड, गेटिंग अवेयर ऑफ रीजनेबल एंड प्योर रॉ मटेरियल, publicize your small business. Last but not the least, honest about the quality control of the product. So basically बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो इंडियन मार्केट है वो इंडियन स्टफ को काफी प्रमोट कर रहा है। Now they understand कि
हमें इंडियन स्टफ ही खरीदना है, मेड इन इंडिया स्टफ सामान ही खरीदना है, तो फिर हमारे यूथ को मार्केट में आना चाहिए, है ना। जब मार्केट में चीजें अवेलेबल होंगी तभी तो कंज्यूमर्स ले पाएंगे ना, बायर्स तभी ले पाएंगे व्हेन दे हैव मोर स्टफ एंड दे मोर ऑप्शंस। तो अब हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम सर्च करें। आई एम श्योर जो हमारे यूथ है या हमारे यंगस्टर्स यहाँ पर हैं, वो शायद हमसे भी बहुत ज्यादा आगे सोच के ये काम कर पाएंगे और कर लेंगे, बिकॉज आज का भी जो बायर है ना, उसको सारा अंडरस्टैंडिंग है। तो अब वो भी क्या कर रहे हैं, जो वॉलेट्स है उनको बुलेट्स की तरह यूज कर रहे हैं टू सेव द कंट्री एंड टू सेव द नेशन। तो अब उनका बोलना ये हो गया कि अगर हम बॉर्डर्स पर नहीं जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट अपना इंडियन स्टफ खरीदें, और इंडियन स्टफ को खरीद के एटलीस्ट हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करें उसको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा मेन मोटिव है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और बस देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू if you have a skill and you are passionate about it. With the new technology, businesses can now be managed even from home and without or less finances. So buckle your shoes and look at what is best for you and the society. Sky is the limit for all of you, and hard work is the key to success. Jai Hind. जय हिंद। Jai बदल Hind to जाओ everyone and all the best to our youngsters. I'm always available. वैसे मेरा बच्चों के साथ और यंगस्टर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हमेशा से रहा है। So जब भी जिसको भी लगे, I'm always there to guide them, even to teach them. I take workshops also for all these creative things. So they're always welcome. Thank you so much. Jai Hind and regards. आपने Now, हाँ yeah, एक वो please continue. जॉब के लिए और उसके लिए तो ये तो हमारी कम्युनिटी में हम वो है ना कि हमेशा ही जरूरत रही है, और आपकी स्पीच बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर विवेक कुलश्रेष्ठा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अखिल भारतीय कुलसेसन। Yeah, thank you, Nishiji. Thank you, Vrinda ji. You have done a great job. Well, let me brief about the organization which we are using the platform. That is the Akhil Bharatiya Kulsar Sangh. Akhil Bharatiya Kulsar Sangh is established in 21st November 1954, एंड आजकल अखिल भारतीय कुलसर संघ की जो पॉपुलरिटी है वो उसके 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को 20 सूत्रीय प्रोग्राम्स को लेके ज़्यादा मानी जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि गेट टुगेदर प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, जो लॉकडाउन में हम लोगों ने काफ़ी इसको इम्प्रूव किया है और काफ़ी सारे हम लोगों ने कंडक्ट भी किए हैं। असिस्टेंस इन मेडिकल इमरजेंसीज हैं, असिस्टेंस इन स्कॉलरशिप्स हैं, कोविड-19 रिलीफ फंड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स फॉर टू ऑनरेबल मेंबर्स, felicitation for the honorable senior members, assistance in identifying marriageable children, Chitra AVKS souvenir, Spirit of Kulsestra AVKS Chronicle, special honor to achievers, education awards, counseling on various aspects, development program, declamation contest, associated platform for talented artists, annual general meeting and conventions, membership campaigning, AVKS directory, the community directory you can say, and the promoting art and cultural. See, in this executive committee, which we are calling down, is the 47th executive committee, and we have an experienced and dynamic patriotic, fully dedicated office bearers and team members team. हम लोगों ने कुछ फील्ड्स हैं जिसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया और हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन शो किया है, कल्चरल, मीडिया, वेबसाइट, उद्योग, मैरिजेबल चिल्ड्रंस। एडिटोरियल टीम है हमारी फॉर द चित्राग एंड स्पिरिट ऑफ कुलचेस्टर। हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में। देव कॉल्ड एज द स्पेशल इन्वाइटीज, एक्सपीरियंस एडवाइजर्स हैं टू फॉर्मिंग ए बोर्ड। हमने कुछ छोटी छोटी एक्शन कमिटीज को बनाया है, जैसे सोशल वेलफेयर कमेटी है, इट इज द कुलसेस कल्याण संघ, एजुकेशन अवार्ड कमेटी, मेडिकल कमेटी, इवेंट कमेटी, प्रोपोगेंडा कमेटी, फंड रेजिंग कमेटी, एनवायरनमेंट कमेटी जिसको डॉक्टर श्रीकांत लीड कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन, लीगल जिसको देवल जी लीड कर रहे हैं, काव्य सुर संघ फॉर द कल्चरल एंड कल्चर प्रोग्राम्स,
Members Detail Subdivision Committee. We have a representation in 36 cities right now. And अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, our main responsibility is to give utmost values and respect to our members, sponsors, donors, and emeritus office bearers and their families, and above all, the name on which any scheme is commenced. Our motto is the don't make walls, build bridges. So here is the brief introduction for the Akhil Bharatiya Kulsa Sangh, who is serving from last 67 year. Thank you. Thank you very much. And I would request our President, Honorable President, Shri Devendra Kumar Kulshrestha Sunil ji to conclude the show, conference. नमस्कार, आप सभी लोगों ने अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ वर्चुअल कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा, जिसमें श्री यश कुलश्रेष्ठ जी, डॉक्टर श्रीकांत जी और ये श्रीमती वृंदा कुलश्रेष्ठ, ऋतु कुलश्रेष्ठ जी के आपने विचार सुने होंगे और आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको जो है ट्रेमेंडस लाभ होगा, फायदा होगा। आपको इनके एक्सपीरियंस से हमेशा गेन करते रहेंगे आप लोग। मैं इसी के साथ श्रीमती निशी कुलश्रेष्ठ, श्री अक्षत कुलश्रेष्ठ, श्री विवेक कुलश्रेष्ठ जी और श्री मिस अगरनी कुलश्रेष्ठ सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा फैंटास्टिक प्रोग्राम बनाया है। बहुत सबके लिए लाभदायक प्रोग्राम है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पेशेंसली और बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को सुना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Excellent presentation, Sunil. Beautiful. Well done. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. And we have our patron, Shri S.P. Bhati ji. S.P. Bhati साहब। I would request him to, share his views. Oh God, I'm not prepared for that. Not an issue, sir. You are very experienced. And No, I was listening very keenly to each speaker, and really, I would like to focus the talk given by the Anuj. बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था उनका। He was absolutely right कि किसी भी बिजनेस में आप 3-5 साल में ग्रो नहीं कर सकते। You can't grow overnight. बिल्कुल बिल्कुल सर। If you don't have the guts, watch my words. If you don't have the guts, you don't have the patience, and you don't have the adequate funds, please go to Ritu. Please go to Ritu for the small scale. वहां पर आपका 5-10 हजार रुपए का लॉस होगा. It's not a big loss. No, Anuj was quoting 20 lakhs to start the business. Now let me clarify this. You require investment for capital items, that is the building and the machineries. This is one-time investment. And then you require running investment, which is the raw material, packaging material, then processing of that by the human persons, finally dispatches. ये जो आपका रेवेन्यू बजट है, ये आपके हाथ में 4 टाइम होना चाहिए. Because you purchase an item, raw material, you purchase the packaging machinery, packaging material, you process it out, finished goods, उसके बाद आप मार्केट में डाल देते हैं. Now you are waiting for the payments. Payments तो है नहीं आपके पास अभी, because the person who has purchased the material will tell you, आप अगले महीने आइएगा. Now the month has already started, so again you require the raw material and the packaging material. So the second circle starts. So again you have to invest the equal amount which you have invested in the first term. ये आपने फिर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया, माल तैयार हो गया, पैकेजिंग हो गई, उसकी फिर डिस्पैच हो गया, फिर मार्केट में चला गया. हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आ जाए, पूरा पैसा अभी भी नहीं आएगा. It may take 3 or 4 or 5 tons. I'm in business and I was in service also. बिरला में काम किया, साराभाई में काम किया, मफतलाल में काम किया, ग्लैक्सो हेंज मल्टीनेशनल में काम किया 38 years. 20 years I am having the business. तो मैंने बड़े बड़े लोगों को फेलियर होते देखा है. One thing, please note it down. अपनी चुटिया अगर है तो चुटिया में बांध लीजिए. To start the business, never ever take the loan, especially from the banks. कभी जिंदगी में लोन मत लेना, वरना पेपर में नाम निकलेगा आपका भी और आपका फर्म का भी. And one more thing, don't start the business in partnership.
It is must. Do not start the business in partnership. Today you are very friendly with that particular person. त्रिपाठी जी हैं कि खन्ना जी हैं या श्रीवास्तव जी हैं. Second generation will not have that relation with that guy. Third generation तो आते आते जैसा हमारे अलीगढ़ में किसी जमाने में दर्शन ऑयल मिल हुआ करती थी, किसी जमाने में 4-5 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ हुआ करती थी, सब इस वो बिल्कुल खंडहर हो गई हैं. So anyway, I must say the presentation was beautiful और जितने लोगों ने इसका एडवांटेज लिया होगा, it is a feather in cap to the ABKS. और thanks to Sunil, Vivek, Nisha, well planned, well executed, done. तालियां. Thank you. Nice Thank one. you, sir. Thank you. Thank you, Vivek. Thank you. Before we conclude, Before we conclude, I just want to say something representing the youth who's watching this. I'll especially like to thank the ABKM for giving us this platform where we could listen to such learned people and their experiences. बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का भाव बन जाता है. भले ही आज सबने बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए कुछ बोला, but I'm sure they have motivated each one of us for forever in our life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Agrani. You have done a really wonderful job. You and Nishi Thank both.